नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह हमें हक़ का हक़ होना दिखा दे और उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, हमें बातिल का बातिल होना दिखा दे और उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। And we are going to start first with the ahadith about fasting. And precept number 96, fast is disrupted by intentional vomiting and it is obligatory to make up the disrupted fast. What is intentional vomiting? If you were to put your finger in your mouth and then vomit, that is intentional. Precept 97, fast is not disrupted by an involuntary vomiting. यानी अगर आपको उल्टी हो गई उससे रोजा नहीं टूटता है. If you're unwell and you've thrown up, that doesn't mean that your fast is broken. And the hadith is Abu Huraira narrated that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam stated, when a person who is fasting vomits involuntarily, the fast is not disrupted. However, if vomiting is intentional, he should make up for the disrupted fast. So if somebody is intentionally vomited, then they have to make up the fast, otherwise roza nahi tootta hai. Precept 98, the fast of a woman is disrupted by the commencement of the menstrual or menstrual condition. The disrupted fast should be made up but not the prayer. Abu Sa'id Khudri narrates that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam stated, is it not the fact that when a woman is in menstrual strait she can neither pray nor fast? This is a lapse for her in the religion. So, one of the questions that I get a lot is कि मेरा रोज़ा जो है वो 6:30 बजे टूट गया. I started my menses or I started my menses at 2 o'clock in the afternoon. So what should I do? Should I break my fast and start eating? No. Complete your fast. Even though it's not counted, that fast is not counted and that day that your fast was broken has to be made up later. So if you miss out on 6 or 7 days of fasting because of your menses, then after Ramzan, before the next Ramzan, you should make up for those 6 and 7 days of fasting. Precept 99, excellence of supplicatory fasts. Abu Sa'id Khudri narrates that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam stated, whoever observed a supplicatory fast for 1 day during holy war, Allah will keep him away from hell at a distance of 70 years of traveling. Now, supplicatory fast is nafli roze. और बहुत ज़्यादा नफली रोज़ों का सवाब है. And we should try after Ramzan, on and off, every month, every other month, try to keep 1 or 2 supplicatory fasts. Precept 100, fasting for 6 days in Shawwal every year is equivalent to fasting for the entire life. Abu Ayyub Ansari narrates that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam stated, whoever after completing the fasts of Ramadan fasts for 6 days in Shawwal every year, he will be rewarded as if he has been fasting for his entire life. Now look at the maths. It's absolutely amazing. ये जो 6 रोजे Shawwal के हैं, first of all you have to understand that Shawwal के 6 रोजे are not counted with the qaza roza niyats. So like you missed 6 or 7 rozas in Ramzan, the ones that you are keeping in Shawwal are not going to be a makeup for your farz roza. These are not the farz roza ki qaza. These 6 rozas of Shawwal would be a nafli roza. And in this nafli roza, what is the hadith saying? That subhanallah, iski niyat nafli roze ki hoti hai Shawwal ke rozon ki. And Shawwal ke ye 6 roze agar aap rakh lein, and if you keep them every year, then Allah will reward you on the day of Qiyamah as if you have spent your entire life. So 6 rozas a year equals to 365 days of the year. Allah will reward you as if you have been fasting your entire life. It is so beautiful. नहीं, 6 days in Shawwal आपने पूरे करने हैं. Usually people keep it consecutively because it's easier to do it together than to do it separately. But you can keep it any 6 days of Shawwal. अच्छा, fasting regularly during the days of Beed. Now the days of Beed, I've been putting those also. Ayam al-Beed ke roze jo hote hain, this is the 13th, 14th and 15th of the lunar month of the Islamic calendar. 13th, 14th and 15th will earn the reward equivalent to fasting of the entire life. This is also a nafli roza. Fasting from Ramadan from one to another and fasting for 3 days of Beed.
the bright nights in every lunar month is equivalent to fasting for the entire life. This is narrated by Abu Qatada, that Aap Sallam has stated this. Again, so what are we doing? This is not counting. Ramzan ke roze to farz hai. रमजान के रोजों के अलावा ये नफली रोजे हैं, बट इनका बोनस पॉइंट इतना ज्यादा है कि यू डू 3 every month and you are rewarded as if you're fasting for your entire life. And precept 102, it is permissible to observe supplicatory fasts while traveling. Hamza bin Amr Aslami has transmitted that he inquired the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, shall I fast while traveling? The Messenger of Allah replies, you may fast if you like, or you may leave it if you like. And precept 103, fasting during the journey of jihad or hajj will keep you away from hell at a distance of 70 years traveling. And precept 104, the supplicatory fasts on Monday and Thursday were liked by Allah's Messenger. Abu Huraira Raziallahu anha narrates that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam stated, deeds of people are presented before Allah on Monday and Thursday. I would like to be in a state of fasting when my deeds are presented before Allah sallallahu alaihi wasallam. And we'll do one more, precept 105. Fasting on the day of Arafah, 9th Dhul Hijjah, is an expiation for minor sins committed during 2 years, which means the past 1 year and the coming next year. And fasting on the day of Ashura, which is the 10th of Muharram, is an expiation for minor sins committing during the last 1 year. Qatada Raziallahu anha narrates that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam stated, fasting on the day of Arafah is an expiation for sins committed during 2 years, past 1 year and the next year. And fasting on the day of Ashura is an expiation for sins committed in the past 1 year. So these are again the rozas that are nafli. We'll continue with precept 106 because I have to start with the surah now. And the format of the Ramzan classes, if you've done classes before with me in Ramzan, you know that I'm not going to be in a hurry to finish the surah during Ramzan. Rather, we're going to try, inshallah, and look into every ayat, ponder into it and go slowly. And last Ramzan, those of you who were with me, we did Surah Al-Baqarah. This Ramzan, inshallah, we are aiming to complete Surah Ali Imran and Surah Nisa. But again, if anything is left, then I will continue it in my weekly classes because we're going to try and do tadabbur. Allah Pak has said to read the Quran and then to ponder over it. So we're going to try and inshallah look into the depth of the ayats. And the Quran is truly, it's as deep as the ocean. So we really, as deep as we dive, there's still deeper to go. But we will still try and look into the ayats with a little bit more of detail. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So we will start with Surah Ali Imran, which is a Madani surah. It has 200 verses. And the central theme, okay, I'll discuss the central theme after I read to you ayat number. We will start with ayat number 1 to 8. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Most Merciful. Alif Lam Mim. Allah is He besides whom there is no other deity. He is living, the maintainer. He revealed the Quran to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, with the truth, confirming that which was before it, and revealed the Torah and Injil from aforetime as a guidance to man, and He revealed the discerner. Verily those who disbelieve in the verses of Allah shall have an immense punishment. Allah is mighty, the avenger. Definitely nothing in the heavens or the earth is hidden from Allah. He is the one who fashions you in the wombs as He pleases. There is no deity save Him, the mighty, the wise. And ayat number 7 and 8. He it was who revealed unto you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the book wherein lies muhkamat, clear verses that are the Ummul Kitab, and others that are mutashabihat, allegorical. As for those who have crookedness in their hearts, they pursue those that are allegorical, mutashabihat, thereby seeking to cause dissension and seeking their interpretation. None knows that their interpretation except Allah. Those who are sound in knowledge say, we believe therein, all is from our Lord. None take heed besides men of understanding. Our Lord cause not our hearts to stray after you have guided us, and bestow on us mercy, for verily you are the bestower.
So let's look at the central theme of Surah Al Imran. The beginning of Surah Al Imran, the first part is a khutbah. And what happened was that a delegation of Christians had come to Medina, and it had come from Najran to meet the Prophet ﷺ, and it was a very grand delegation. So their priests and bishops had come, और बहुत शान वाले, very high level Christian, high level priests and bishops had come to meet the Prophet ﷺ. So the first part is actually going to be addressing these Christians. This khutbah is towards them. And the time of revelation is either the 9th Hijri, which is after Fatah Makkah, or it came down in the 3rd Hijri. One of the two. ठीक है? And the beginning, like I said, ये पुरजोर दावत towards the Christians थी in Al Imran. Like in when we did Surah Al-Baqarah, there was a dawat towards Bani Israel कि तुम दीन ले आओ, इस्लाम ले आओ. ठीक है, तो एक इसराइलियों की तरफ, but here specially towards the Christians ये दावत दी जा रही थी, ये खुतबा दिया गया था. The second part of Al Imran will then turn towards the analysis of Uhud, the battle of Uhud, and also there is mention of Amar bil Maruf Nahi Anil Munkar. What is that? We have to spread good and stop from evil. ठीक है, and which is incumbent upon every Muslim. इसकी बात की जाएगी, and then how to give dars to people who are from another faith. उसका जो तरीका होता है उसके अंदर it's going to be covered. One is मुकालमा. मुकालमे का मतलब होता है interfaith dialogue. You're sitting with a Christian or a Jew and you're talking about religion. This is mukalma. Then mubahisa is a debate, and mubahisa is a little bit stronger. ठीक है, debate के अंदर you not only make your points but you also try and prove those points. And mubahisa से next level upper. अच्छा, this is supposed to go gradually. डायरेक्ट मुबाहिसे के ऊपर नहीं आना या डायरेक्ट मुजादला के ऊपर नहीं आना. यू आर सपोज टू स्टार्ट विद मुकालमा. मुकालमा इज सपोज टू बी अ सॉफ्ट डायलॉग. फिर नहीं माने, फिर देन यू गोइंग टू गो ऑन टू अ मुबाहिसा, दैट इज अ डिबेट. फिर उसके बाद मुजादला इज व्हेन द आर्ग्यूमेंट इज सिवियर. ऐसी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना, हक को ऐसे प्रेजेंट करना कि सामने वाला खामोश हो जाए. दिस इज देन अ मुजादला. एंड अगर तब भी नहीं माने तो द फाइनल थिंग दैट इज अलाउड टू अ दाई is mubahila. This is not with Muslims, this is with non-Muslims. Mubahila is the last resort where the two parties will part, and while they are parting, where they say to each other, the curse of God be on the one who is a liar. So mubahila is really the end. जब आपने मुकालमा कर लिया, मुबाहिसा कर लिया, मुबाहिला कर लिया, लास्ट रिजॉर्ट कर लिया, आपने सारी डिबेटिंग कर ली और वो नहीं मान रहा, then the last thing that is allowed is mubahila, which is that they part. Acha. And in Surah Al Imran, we will see, in Surah Baqarah, we had quite a bit of Shariat that came, right? In Surah Al Imran, we will see that the only Shariat that is mentioned is going to be the Shariat of interest. Sood ke bare mein Shariat aati hai iske andar. And then there are lots of beautiful, beautiful du'as in Surah Al Imran. And what I want you to do is note down the ayat number, take them with a marker, and use these du'as. Some of the most beautiful du'as are the du'as in the Quran. और हमें तो दुआ मांगने का तरीका भी नहीं आता, but because it's Ramzan, try and make an extra effort to find these du'as and then make them part of your daily routine and make them part of your du'as. Achha, like I told you, that the Christian delegation was, so when they came, the Christian delegation came to, what is the one concept that the Christians had changed? देखिए, आया तो जब Christianity आई थी तो ईसा अलैहिस्सलाम also brought the concept of tawheed. ठीक है? He was also Muslim. He also brought the concept of one God. And for 300 years, the Christians had no concept of Trinity. For 300 years, they worshipped one Allah. ये तो बाद में जब उन्होंने दीन चेंज किया, then they changed their prophet and they made him the son of God. That is the concept of, but that didn't, Christianity was not corrupted for 300 years. They remained Muslim. They remained on Tawheed. अच्छा, अब ये जो Christian delegation आई थी, उनकी divinity of Christ थी. Means Isa alayhi salam, they were called Muslims. All of the religions that have come down on the dunya, all of the books, all of the prophets, everything was Muslim. सब ने अपने नाम बदल लिए. बट नहीं, इवन बनी इसराइल के लिए अल्लाह पाक ने इस्लाम का नाम पसंद किया था, मुस्लिम का नाम पसंद किया था. उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने यहूद का नाम अपने लिए लिया.
बनी इसराइल का नाम लिया. Yeah. So they didn't. They didn't take the name Muslims. Only Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's ummah is the only ummah who took the name Muslim and took the name Islam. Deen jitna bhi dunya ke upar utra was with Tawheed. It was Islam. It was with the same concept of oneness of Allah. But they all took their own names, like Christianity. They didn't. Yeah, Islam उन्होंने अपने लिए पसंद ही नहीं किया ना नाम. उन्होंने अपने आप को, they used to call them Yahud. They used to call themselves Jews even then. So, but the concept was Tawheed, oneness of Allah, has come down in all of the books with all of the prophets. Now, if you look at the beginning ayat, I told you it's a khutbah towards who? Towards the Christians. And सबसे पहले क्या कहा जा रहा है? Allah is He besides whom there is no other deity. So Tawheed is being presented to them. कि कैसे तुमने और खुदा बना लिए, कैसे तुमने खुदा का बेटा बना लिया. How is it? उनकी इंटेलिजेंस को अपील किया जा रहा है via this khutbah, and Haqq is being presented to them. And Alif Lam Mim, the beginning of this ayat, that is again Huruf Muqatat. We don't know what Huruf Muqatat means, but Alif Lam Mim say there is Surah Baqarah starts with Alif Lam Mim, Ali Imran starts with Alif Lam Mim, and there are 4 Makki surahs that also begin with Alif Lam Mim. And if we look at the first few ayats, like I said, Tawheed is being explained. ठीक है? Allah is being introduced to the Christians in all of His might and power. He is being explained कि नहीं, Allah का बेटा हो ही नहीं सकता ना. He is such a superior authority that He cannot have a family. Because एक से दो जो हो गया, वो तो फिर species बन जाएगी. फिर तो oneness of God का concept खत्म हो जाता है वहाँ पे. अच्छा. Then Allah's name, the Arabic that is written over here, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Al-hayy and al-qayyum. Now we're going to look into these words beautifully because they are absolutely amazing. They show us the power of Allah. They show us the authority of Allah. But before that, ये भी कुछ ulama ikram कहते हैं कि al-hayyul qayyum is also, they call it isme azam. Some of them say कि ये नाम यूज करके दुआ मांगनी चाहिए, दुआ की कबूलियत होती है. अल हई अल कय्यूम, अल हय्युल कय्यूम. अच्छा, ऑल्सो आयतुल कुर्सी के अंदर आता है अल हय्युल कय्यूम, सूरह बकरा के अंदर आता है अल हय्युल कय्यूम, आले इमरान के अंदर आता है, सूरह ताहा. These names, they come together in these surahs. Now let's look at al hayy. Al hayy means all of Allah's attributes in its perfection. ठीक है? Because al hayy means the English translation again is very, very, basically it means the ever living, right? लेकिन हमारे words limited हैं, इसलिए हमारी सोच limited हो जाती है. It's not just ever living, but while Allah is ever living, Allah is ever magnificent. Allah is ever supreme, ever superior. And अब अपने mind को अगर हम थोड़ा और imagination को expand करें, all of His attributes, Allah के जितने भी नाम हैं वो अपनी perfection पे हैं in the name Al-Hayy. For instance, Allah is Basir, He sees, but nobody sees like Allah sees. Allah sees the past, Allah sees the future, Allah sees in your heart, Allah knows from every atom, Allah sees every drop. So expands the imagination to, because we are limited and Allah is unlimited. So Al-Hayy is a very heavy word actually. When we're trying to understand the attribute of Allah, it's mind-blowing, subhanallah, that it's all of His names at perfection. Ever living, since forever, and maintained. Nauzubillah, Allah doesn't go up and down. He doesn't go, sometimes His power goes down, या sometimes Al-Hayy में कम हो जाएगा Allah, या Al-Qayyum में, no. All of His names at perfection and maintained since forever till forever. ठीक है, ये Al-Hayy के अंदर आ गया. So what is this saying to the Christians? It's saying, use your intelligence. How can somebody who was hanged on the cross be Al-Hayy? Allah is the ever living. How can somebody जो मजबूर हो गया, जो जिसको सूली पे लटका दिया गया, वो खुदा हो कैसे सकता है? तो अपनी अकल तो लगाओ, ठीक है? So this is again, they were being tempted to use their intelligence. And then Al-Qayyum. Al-Qayyum is, again, we're going to have to expand our imagination. It's a very powerful word. It means the one who is sustaining.
A lot of religions have this concept. Sometimes, you know, Hindus वो कहते हैं कि जी बना के हमें छोड़ दिया है और हम रुल रहे हैं, क्योंकि नाउजुबिल्लाह वो तो अपने भगवानों के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, बना तो दिए हैं, उसके बाद हमें छोड़ दिया हमारे हाल पे और हम धक्के खाते रहते हैं. Allah is Al-Qayyum, means he is sustaining the entire universe. So Islam के अंदर ये concept बिल्कुल भी, we can never say that Allah created and then Allah left the universe. Autopilot पे चल रही है universe. No. Allah says himself in the Quran that he is Al-Qayyum. And Al-Qayyum means that not only does Allah have entire ilm of the entire universe. So entirety of ilm. अब ilm के अंदर क्या होगा? Every drop of water in the ocean, every drop of rain that falls on the dunya, Allah knows it. That is his extent of ilm. Every atom जो है microscopic है. पूरी कायनात के अंदर trillions and trillions of atoms है. Allah has the ilm of every atom. अब मुझे बताएं, इतने बड़े हम, how can we say Allah doesn't know us? Allah is in tune with and has ilm of and is sustaining every drop, every atom. तो इतने बड़े हम कैसे कह सकते नहीं Allah is too busy running the universe, उसको तो पता ही नहीं है मैं क्या मांग रही हूँ और मैं क्या कह रही हूँ. ये बहुत गलत concept है. And this clarifies, the Quran clarifies these concepts. Allah says, I am right here and I am the one holding on. Qayyum का मतलब है holding on. एक बहुत खूबसूरत डॉक्टर इसरार की एक्सप्लेनेशन है इसकी. I will continue with that. Let's look at the ilm. All of the scientific laws created by Allah, sustained by Allah till date. ठीक है? Gravity for instance. Gravity कहाँ चली गई? जब से दुनिया बनी है तब से ये लॉ है, अप्लाइड है, आज भी अप्लाइड है, एंड इट्स अप्लाइड एट एग्जैक्टली द सेम. आपको पता है कि यूनिवर्स के अंदर जो स्टार्स हैं उनके बीच में एक पुल है, अट्रैक्शन पुल है. अगर वो पुल ज्यादा हो जाए इन द यूनिवर्स, द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स वुड कोलाइड विद ईच अदर. ठीक है? और फट जाए. और अगर वो कम हो जाए, दे वुड फ्लोट अवे, देन दे वुड कोलाइड ऑन द अदर साइड. इतना माइन्यूट फाइन बैलेंस है दैट इज मेंटेन्ड इन द यूनिवर्स every split second of the day since hundreds and thousands and billions of years. This is maintained. This is Al-Qayyum. He is really truly running the show. हम पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं कि ये हम चलाते हैं. एक हवा नहीं चलती अल्लाह के हुक्म के बगैर. एक परिंदा पर नहीं मार सकता. I'm telling you, an atom is microscopic. So we have to feel the weight of the power of Allah subhanallah. Then all of the rules, the regulations, they are made. All of the heavenly bodies, the sun, the moon. रोज टाइम पे ही निकलता है ना sun moon. किसी दिन हुआ कि 2 मिनट 5 मिनट लेट हो गया. Every day it is sustained by who? Only by Allah's commands. So this Ramzan we're going to try and remember this name Al-Qayyum. And in everything around us now as an experiment, जब यहाँ से निकलेंगे ना रोजे की हालत में, जब हवा लगेगी तो याद करेंगे कि अल्लाह ये तेरे हुक्म से चली है. एवरीथिंग. जब सांस लेंगे, ये सांस जो हमारी आती है अल कय्यूम के हुक्म से ही आती है. जिस दिन उसका हुक्म नहीं होगा उस दिन अगली सांस नहीं आएगी. This is him sustaining us. He's sustaining the universe, yes. But let's make it personal. ये जो एक सांस चलती है, ये जो when you swallow your spit, ये जो चल रहा है अंदर, ये अल कय्यूम की sustaining की वजह से ही चल रहा है. Can you imagine the power of Allah in the close? और जब हम नाफरमान होते हैं, Allah is still sustaining us. आप सोचें, नाफरमानी के अंदर बंदा गुनाह कर रहा है, कबीरा गुनाह कर रहा है, अल्लाह ने क्या सांस रोक ली? नहीं. अल कय्यूम is still maintaining us, सुभान अल्लाह. अच्छा, and then like I said, डॉक्टर इसरार अहमद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि in your mind imagine a building. ठीक है? In your imagination imagine the building. कोई भी आप ले लें, आईफल टावर ले लें. ठीक है? अब आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें एंड इमेजिन आईफल टावर इन योर माइंड. ठीक है? अब जब आप आईफल टावर को इमेजिन करते हैं तो वो पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई. किसमें? ओनली विद इन योर इमेजिनेशन. नाउ इफ यू ओपन योर आई, द आईफल टावर इज डिसअपियर्ड, खत्म हो गया. डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं ये है अल कय्यूम. अल्लाह ने ऐसे थामा हुआ है कायनात को कि इवन फॉर अ स्प्लिट सेकंड अगर अल्लाह ने अपनी अटेंशन या नजर हटाई इस कायनात से
तो पूरी की पूरी कायनात खत्म हो जाएगी. This is Al-Qayyum and this is the power, subhanallah, of Allah. And subhanallah, subhanallah, हम सजदे में सर अगर सारी जिंदगी भी रखें ना, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते. How amazingly He is sustaining the universe and us. You know, sometimes as mothers, we're very possessive about our children. और उसमें भी हम कहते हैं नहीं जी हम बचा रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम खिला रहे हैं, हम ये आपको सुकून दे देता है. हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ अल्लाह कर रहे हैं. हम अल्लाह के हवाले करते हैं. हम अल्लाह के बन जाएं, उनको अल्लाह का बना दें, और अपनी जो पूरी दुनिया है इसको अमान हमारी अल्लाह के हवाले. बिकॉज एक्चुअली ही इज द ओनली वन रनिंग द शो. वी आर नॉट इन द ड्राइविंग सीट. वी आर नॉट. ये तो अल्लाह है जो चला रहा है. जो आज आप चल के घर से क्लास के अंदर पहुंची है, ये भी अल्लाह ने ही पहुंचाया है. हमें लगता है सिर्फ इट्स एन इल्यूजन दैट वी आर द वंस दैट आर डूइंग इट. और इसके लिए तो बहुत दुआ करें कि इसको अब हम मेंटेन कर सके. बियॉन्ड रमजान वी कैन मेंटेन दिस इंशाल्लाह. एंड देन अल गायब. गायब के पर्दों के पीछे कितनी दुनिया है. शायद यूनिवर्स से बड़ी दुनिया है ना. अल्लाह हैज ट्रिलियंस ऑफ एंजल्स. फिर जो जिन की कम्युनिटी है, ये सब हमें तो नहीं नजर आता. हमारी तो आंखों के सामने वी कैन सी द माउंटेन्स एंड द ओशंस एंड द यूनिवर्स दैट अल्लाह सस्टेनिंग एंड ऑल ऑफ द गैलेक्सीज इन द मिल्की वेज, बट वी कांट सी गायब. एंड अल्लाह सस्टेनिंग गायब. ही इज अल कयूम ऑल्सो ऑफ द गायब. ठीक है, उसको भी अल्लाह चला रहा है. तो द ट्रूथ इज, किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि अल्लाह के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता. Nobody knows. This is just a glimpse of His power and His authority, but it's not the whole. We can't even imagine the whole. He is the planner and He has wisdom. और हुक्म देता है कैसे, कुन फयाकुन. अब हम भी हुक्म देते हैं कभी को. हम नौकरों को कहते हैं जी ये बना दो, मुर्गी बना दो. We also delegate. But when we say something, sometimes it's not done. डायरेक्टली कह देते हैं जी बाजी हम नहीं कर रहे आज. ठीक है, आइदर इट इज डिनाइड और इवन व्हेन इट इज इम्प्लीमेंटेड, इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड द वे वी वांटेड इट टू बी. फॉर इंस्टेंस, उसने चिकन बनाया, नमक तेज होगा या मिर्च तेज होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है. राइट, दिस इज अस. जब हम हुक्म देते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कलमाए कुन कहता है, व्हेन ही सेज समथिंग इज टू बी डन, अल्लाह का हुक्म इज डन एग्जैक्टली द वे अल्लाह वांट्स इट. उसमें 19 और 20 का फर्क नहीं होता है, शेड भी चेंज नहीं होता है. Exactly the way Allah wants it, that is how kun fayakun is implemented. So I want you to imagine something. Every leaf on the trees, every leaf, it has a different shade of green. And that different shade of green is exactly the way Allah wanted it. Now take that analysis and apply it to the whole universe. Every single blade of grass grows exactly the way Allah wants it. हर चूंटी जो बनी दुनिया पे, every grain of sand, you can't, मतलब आप जितना सोचोगे, you will just fall in love with Allah's power more and more and more, because it is amazing. It is made exactly the way and implemented exactly the way Allah wants it, subhanallah. And the entire universe is dependent on Allah, and He is dependent on no one. This is truly Allah's shan. He is dependent on no one. Now, understanding Al-Hayy Al-Qayyum, understanding the power of Allah, understanding He is the only one running the show, this we should feel in the depth of our duas. We have an opportunity to talk directly to Him. हम किसी बादशाह से कभी बात कर सकते हैं? हमारी औकात है? We can't pick up the phone and call the president. We can't pick up the phone and call the prime minister. ये अल्लाह रब्बुल इज्जत है. वो कहता है हाथ उठाओ और तुम मांगो मुझसे, तुमने क्या मांगना है. एंड ही इज द वन हु इज रनिंग द शो. एक्चुअली तो तुम्हें जो भी चाहिए, तुम्हें इज्जत चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, सेहत चाहिए, वी वांट प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड, कुछ भी चाहिए, जो चाहिए इसी के हाथ में. एंड ही हैज गिवन अस हिज डायरेक्ट लाइन 24 hours a day. मेरे बंदे मुझसे मांगो. और एक बात याद रखिएगा, दुनिया के ऊपर किसी से मांगने जाते हैं ना, एक दफा जाएंगे, it doesn't matter how nice a person I am. If you come to me once or twice, I'll be like, अच्छा ठीक है, ये ले लो, ये ले लो. But मैं इंसान हूं, मैं लिमिटेड हूं. तीसरी दफा चिढ़ूंगी, चौथी दफा चिढ़ूंगी, पांचवी दफा कहूंगी बस कर दो, कितना मांगना है तुमने. ऐसे ही होता है ना. दिस इज एन इंसान की लिमिट. अल्लाह रब्बुल इज्जत
कि सिर्फ वो पाक जात है, वो खुश होता है। जितना उससे मांगो, जितना गिड़गिड़ाओ, जितना उसके आगे हाथ फैलाओ और सब मांग लो, पूरी कायनात मांग लो अल्लाह से, अल्लाह के खजानों में कुछ कमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इज हैप्पी। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट दिस रमजान दुआ को एक रनिंग कॉन्वर्सेशन बनाए। लेट्स मेक अ हैबिट टू स्टार्ट टॉकिंग टू अल्लाह ऑन अ रेगुलर बेसिस। नॉट कि जी खाली नमाज के बाद या खाली इस टाइम पे हम हाथ उठा के, किसी वक्त भी आप फारिग बैठे, स्टार्ट टॉकिंग टू अल्लाह। अल्लाह देखे ना मेरा ये मसला भी तो है ना, अच्छा मेरा अल्लाह ये मसला भी तो ठीक कर दिया था ना आपने, अल्लाह मुझे इस वजह से भी निकाल दे अल्लाह। एंड कीप आस्किंग फॉर हिदायत, बेग अल्लाह, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक। आप सल्लम की दुआ है, ओ टर्नर ऑफ हार्ट्स मेक फर्म माय हार्ट ऑन योर दीन। बिकॉज अभी तो हम यहाँ आए हैं, हमें ये नहीं पता कि रमजान खत्म होगा, शैतान हमें फिर कहाँ ले जाएगा। हमारे दिल बड़े ना इधर के उधर डोलते रहते हैं, तो अल्लाह से ये स्टेबिलिटी मांगे, ये स्टेडफास्टनेस मांगे कि अल्लाह, you know, we are feeling a strength of iman in Ramzan like never before. Help us to maintain this. Help us to maintain our iman and our connection with you. Then, so what is being shown to them is that Allah is Al-Hayy Al-Qayyum. This is being explained to the Christians. How can Isa alayhi salam be Allah? It's not possible. He cannot sustain the universe. And no human, nobody else except for Allah can have this power. So they are being invited to think about it. ठीक है? फिर आप सल्लम ने तस्दीक जो की थी, he did तस्दीक of all of the previous prophets and all of the previous books. यहाँ पे आयत के अंदर, आयत नंबर 3 के अंदर तौरात and Injil is being mentioned. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he came, he didn't say that Taurat and Injil are not the books of Allah. He said yes, Musa alayhi salam was the prophet of Allah, ईसा अलैहिस्सलाम was the prophet of Allah. ये दोनों भी आसमानी किताबें, हमारा ईमान है इसके ऊपर कि ये आसमान से उतरी थी किताबें, अल्लाह was the one. तो उन्होंने तस्दीक तो की थी. Taurat was the Old Testament. You see what happened was, we know that the Yahud, the Christians and the Bani Israel had changed their books. ये तो हमें पता है. But not only had they changed their books, they didn't even apply it on themselves. Let me explain. Bani Israel, when Musa alayhi salam came, उनके ऊपर कौन सी किताब नाजिल हुई थी? तौरात. ठीक है? तौरात is a book of commandments. तौरात is pure शरीयत. ठीक है? अब जब शरीयत है, उसकी कोई आगे या पीछे explanation नहीं है. ठीक है? जब इंजील आई थी मूसा अलैहिस्सलाम से, सो इंजील इज एक्चुअली पार्ट 2 ऑफ तौरात. अगर देखा जाए तो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताब आई थी, द क्रिश्चियंस वर सपोज्ड टू बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ द यहूद. सो दे वर सपोज्ड टू ब्रिंग ईमान ऑन देयर बुक, ऑन इंजील, द बाइबल, एंड दे वर आल्सो सपोज्ड टू बिलीव द शरीयत ऑफ तौरात. तब ये कंप्लीट होता रिलीजन. पहले बनी इसराइल ने अपना दीन चेंज कर दिया. ठीक है? उसके बाद जब इंजील आई, इंजील हैज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द शरीयत इन द तौरात. समझ आई? तो कंप्लीट हो जाती. अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान इज सच अ बुक दैट इट हैज बोथ. इट हैज शरीयत एंड इट हैज एक्सप्लेनेशंस. सो इट्स अ ब्यूटिफुल कंटिन्यूएशन. बट फॉर देम इट वाज बुक पार्ट ए, पार्ट बी. दे सेपरेटेड द टू बुक्स. They became two separate nations. The Bani Israel has only शरीयत and very hard शरीयत. उनकी शरीयत बहुत मुश्किल है. उनके रोजे भी 24 घंटे के होते थे, यानी सिर्फ एक दफा इफ्तारी करते थे, वही इफ्तारी है, वही सहरी है. उसके बाद फॉर 24 आवर्स नथिंग, दे कैन नॉट ईट और ड्रिंक. इतने स्ट्रॉन्ग उनकी सख्त शरीयत थी. ठीक है? उसकी एक्सप्लेनेशन कहां थी? इंजील में. द क्रिश्चियंस, दे टुक द बाइबल एंड दे लेफ्ट द तौरात. दे सेड ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं करता है. सो द क्रिश्चियंस एक्चुअली हैव नो शरीयत. शराब हराम थी बनी इसराइल में, वो बाद में उन्होंने चेंज कर ली, वो अलग बात है. शराब हराम है उनकी शरीयत में. सुअर का गोश्त हराम है. द जूस फॉलो, सुअर का गोश्त हराम है. क्रिश्चियंस डोंट फॉलो. वो कहते हैं वो उनके लिए, हमारे लिए थोड़ी है. सो क्रिश्चियनिटी इज जस्ट अबाउट सिंगिंग हिम्स. आप मतलब गाने गाते रहें, तालियां बजाते रहें, चर्च के अंदर जाके नाच गाना कर लें, आप बस अल्लाह को खुश रखें. और देयर इज नो शरीयत, नथिंग टू कंट्रोल योर नफ्स. You don't have to follow anything Allah said, because वो कहते हैं बाइबल में है ही नहीं. शरीयत तो सारी तौरात के अंदर थी.
अच्छा, अब ये हो गया तौरात और इंजील का मसला. The Christians didn't believe the Torah. अच्छा, अब हम इसकी, if we look into the history of Torah and Injil, there is no original book on the dunya of Torah and Injil. There are scholars who study the Bible and the Torah, and they say कि जो अल्लाह की लिखी हुई आयत है ना, they stand out like diamonds, and the rest of the book looks like a coal mine. पता चलता है कि इंसान ने क्या सेंटेंसेस उसमें डाले, और अल्लाह का, क्योंकि जैसे देखे ना, कुरान के अंदर एक रिदम है. There is a beauty to the words, a rhythm, a divine intrinsic music. हमारे अंदर एक म्यूजिक की लाइकिंग है, इसीलिए तो कुरान के अंदर ये इंट्रिंसिक म्यूजिक अल्लाह ने दी है. There is a natural pull towards it. It's not poetry, but it is way beyond poetry in its beauty. ठीक है? इसी तरह वो कहते हैं कि उसके अंदर एडेड ऑन वर्सेस आपको पता चलते हैं कि किस तरह एड ऑन हुए हैं. And Musa alayhi salam, when he was alive, the Quran, the Torah was not compiled. In fact, 300 years later, because remember Musa alayhi salam took Bani Israel and he went into the desert, फिरौन से भाग के. अब वो डेजर्ट के अंदर कहाँ पे किताब कंपाइल करते हैं? 300 साल तो उस कौम को लगे, बनी इसराइल को, to become good following people, right? तो जब 300 years later, it was actually Zakaria alayhi salam that had it compiled. He had the Torah compiled. And Isa alayhi salam ke upar, the Bible that came down, it was in a language called Syriac. Aramic language है, Syriac. And that language doesn't exist on the dunya today, and there is no original book in that language. ठीक है? All they have is a translation. It's not even written in the original language, and no one knows who narrated it or who compiled it. ये बहुत जरूरी है. किताब का ऑथर किसने लिखा और कहां से किताब जमा हुई? Because I told you, Zakaria alayhi salam compiled the Torah, but later on it was changed. जब ये इजिप्ट के अंदर आए थे तो इन्होंने बैबिलोनियन टाइम के अंदर, बनी इसराइल ने उसके अंदर चेंजेस ला के आयतें चेंज कर दी थी तौरात की. ठीक है? अब अगर इसको हदीस के लेवल पे जज किया जाए, यू नो दैट वी हैव अ स्टैंडर्ड टू जज हदीस, कि ये हदीस वीक है, ठीक है, या इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तौरात और इंजील की दोनों किताबें हदीस के लेवल के ऊपर माजूफ है. माजूफ का मतलब होता है दे फैब्रिकेटेड. हदीस के लेवल पे उनको, मुझे ये बताएं, हाउ कैन पीपल डिनाई द हदीस? हदीस का तो ऑथर भी पता है, हदीस की लाइन ऑफ नरेशन पता है, फ्रॉम द फर्स्ट सहाबा हु नरेटेड इट टिल जितने भी 20, 30, 40 नरेटर्स है, उन सबके शजरे भी पता है. हम हदीस सबसे फेमस जो करते हैं, एक तो मुस्लिम की हदीस है, दूसरी बुखारी. बुखारी उनके लिए मशहूर था दैट, एक तो अल्लाह पाक ने इनको क्या जहन दिए थे, अल्लाह पाक इनको अजर दे. व्हेन ही नरेटेड अ हदीस, he not only narrated the hadith, he narrated the chain of narrators who had told him that hadith. So starting from the first, like for instance, if the hadith was narrated by Bibi Aisha or Hazrat Ali, ठीक है, and then it goes down to the next person, the third person, the fourth person, उनको वो पूरे 100 नाम भी याद थे. ये हदीस और उसके पीछे के 100 नाम वो एक साथ नरेट करते थे. मुझे बताएं, दिस इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस. और हमारे हदीसों के मुकाबले में कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रिजर्व्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म है. हदीसों के मुकाबले में भी द तौरात एंड द इंजील आर वीक. हम उसको एक्सेप्ट ना करें इसलिए कि हमारे पास उसका ऑथर नहीं है. बट यस, वी डू एक्सेप्ट दैट दे आर बुक्स सेंट बाय अल्लाह. Whatever changes they have been made by their qawm, we do accept that they are the book. So Quran ko agar dekha jaye, it is a furqan and a criterion. That is what Allah is saying over here when he says he revealed the discerner. Discerner, furqan. हक को हक बताएगा, झूठ को झूठ, ब्लैक एंड व्हाइट को अलग कर देने वाला ये कुरान है. And honestly, the danger of our lives is we live our lives in a gray area. हम कहते हैं अच्छा ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा, दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो गुड, ही इज ऑल्सो, नमाज पढ़े तब भी गुड है, नहीं पढ़े तब भी अल्लाह गफूर रहीम है. हर चीज को हमने ओके, सॉफ्ट, क्यूट बना लिया ना, इजी करने के लिए लाइफ. कुरान जब आप पढ़ते हैं ना, कुरान में पता चल जाता है दिस इज ओके एंड दिस कैन नेवर बी ओके, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. यू हैव टू नो इनफ दीन टू बी एबल टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम हेल. ये जरूरी है
ये मासूमियत के अंदर जिंदगी गुजारना कि पता नहीं अल्लाह मियाँ ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी तक भी रमजान में भी लोग पूछ रहे थे पता नहीं ये नफलें पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, पता नहीं ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पता होना चाहिए। इतना दीन सीखना आपके ऊपर फर्ज है। देखे, दिस इज अल्लाह's book. We just did Allah's power and authority. Now when you open the Quran, just realize that this is a love letter from Allah, which says from Allah with love. How can you not open it? How can you not understand it? How can you not know what Allah is asking you to do? Basics deen ke sabko pata hone chahiye. Even tell your children, they have to learn enough of the tafsir of the Quran. Maybe even if they don't have time to become alims, to be able to practice Islam. This is an absolute necessity. This is where we mess up. We practice Islam without knowing Islam, without knowing the Quran and the Hadith. And then what happens is then we make invocations. Then we make innovations in deen. फिर अपने अपने तरीके बना लेते हैं अल्लाह को खुश करने का. No, Allah spelled it out for us in the Quran. We have to follow this criterion. And this is the way of the hidayat. Without this, there is no hidayat. अब क्रिश्चियन को मैंने आपको कहा ना ये दावत थी. So Christians को ये कहा जा रहा है, the Jews and the Christians at that time, they used to deny Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, despite the fact that they had खुली निशानियां in their books with descriptions of आप sallallahu alaihi wasallam. Even physical descriptions, even his personalities descriptions. यहाँ तक हदीस के मफहूम के अंदर आता है कि कुरान के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु को अल्लाह पाक फरमाते हैं ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं. 100% guaranteed they were sure that Prophet Muhammad sallallahu is the last prophet. क्यों लेकर नहीं आए थे? बस जिद थी. we're not going to follow him. ईगो था. हम यहूद, हम किसी उसके नीचे, मुस्लिम के नीचे हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? How can we make him our leader? So na'uzubillah, they denied the prophet of Allah after recognizing him. अब कुरान की आयत के अंदर अल्लाह पाक कह रहा है अल्लाह अल-अजीज है, अल्लाह जबरदस्त है और अल्लाह बाइज्जत है. That means Allah has complete authority. Beware. ये उनको एक तरह से धमकी दी जा रही है. These words and strong words do come in the Quran. और धमकी देनी चाहिए, अल्लाह को देनी चाहिए इनको धमकी, बिकॉज उनको जगाया चाह रहा है कि जिस अल्लाह से तुम, दे यूज्ड टू क्लेम टू लव अल्लाह, राइट? वो तो दीवाने थे अल्लाह के, इतने दीवाने थे, इतने पायस थे, तो अल्लाह कह रहा है हाउ डेयर यू डिनाई माई लास्ट प्रॉफिट. Basically what this is saying is that the Christian and the Jews who did not bring iman, and this applies till date, who did not bring iman on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will go to hell. अब वो काफिर हो गए, अब उन्होंने कुफर कर दिया. By denying the Quran, by denying Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they have become kafir. And Allah is saying that He will take revenge. Nothing is hidden for Him. अच्छा, बनी इसराइल की रिवायत के अंदर very interestingly, some of the things of the riwayat of Bani Israel that do not clash with Islam, the ulama are allowed to take reference from this. ठीक है? सो बनी इसराइल की रिवायत के अंदर लिखा हुआ है कि तौरात अल्लाह ने अपने हाथ से लिखी थी. सुभान अल्लाह. एंड इस्लाम एक्सेप्ट्स दिस, आवर उलमा एक्सेप्ट दिस. इतनी अजीम किताब उनको दी गई थी. एंड लुक व्हाट दे डिड विद दैट बुक. एंड देन अल्लाह पाक इज सेइंग व्हाट, ही इज अल हकीम. अपने हाथ से, यानी वो स्लैब्स लिखे हुए अल्लाह ने, अल्लाह wrote it with his, अब अल्लाह के हाथ कैसे है वो हमें नहीं पता, ये मुतशाबिहात में से है, लेकिन अल्लाह wrote this book, the Torah himself. Subhanallah. This is written in their riwayat and we have accepted it also. And Allah is saying Allah is al-Hakim. बहुत हिकमत वाला है, बहुत complete इल्म है अल्लाह के पास, complete इल्म. अब उसके बाद बताया जा रहा है, this ayat is, this truly, you know, is going to scare us. This ayat where he says he is the one who fashions you in the wombs as he pleases. There is no deity. Ayat number 6 है ये. There is no deity save him, the mighty, the wise. अब अल्लाह बता रहा है कि ये जो हकीम है, इसने किया क्या? इसने फैशन किया, इसने तराशा, इसने बनाया. सुभान अल्लाह. He made the faces. Now tell me, how can we make fun of the creation of this supreme creator? And we make a lot of fun. हमें पता भी नहीं होता हम क्या कह रहे होते हैं जब हम मखलूक के बारे में बात कर रहे होते हैं. हमारी जबान ऐसे चलती है
नाक मोटी, आंखें छोटी, गाल बड़े, कान बड़े, फलाना, कद छोटा, कद बड़ा, किसी को जिंदा जीने देते हैं हम? किसी को नहीं। एंड व्हाट वी डोंट रियलाइज इज ये जो कमेंट्री हम जिसके ऊपर कर रहे हैं वो एक्चुअली अल्लाह की क्रिएशन है। वी डोंट रियलाइज दैट। ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। एंड व्हाट स्केयर्स मी द मोस्ट इज यू सी वी हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह ऑन द डे ऑफ कयामत। अब हम रोजे भी रख लें, हम नमाजें भी पढ़ लें, हम बड़ी रातें भी कर लें, हज उम्रे भी कर लें, कयामत के दिन अगर सिर्फ एक सवाल अल्लाह ने पूछ लिया कि तुमने उसकी फलानी के नाक को मोटा कैसे कहा था, हाउ डेयर यू, वो मैंने बनाया था, तो मुझे बताएं उस दिन हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को। सो दिस व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट आवर माइंड, आवर इंटेलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नीड्स टू बी मेड मुस्लिम एंड देन इट नीड्स टू बी कनेक्टेड टू आवर टंग। Once the intellect is connected to our tongue, मोमेंट अपनी जबान रोक लेता है। कभी टेम्प्ट भी हो रहा होता है ना बोलने के लिए कि मोटी लग रही हो, और हमारे तो बगैर फिल्टर के चलते हैं ना। रमजान में इसकी ट्रेनिंग करें, जबान को कनेक्ट करें माइंड से, माइंड को कनेक्ट करें अल्लाह से, और जबान को रोक लें सिर्फ अल्लाह के खौफ से। सिर्फ यकीन करें अल्लाह नोज, अल्लाह बहुत अजर देगा, बहुत अजर देगा, लेकिन इस जबान को रोकना है। बिकॉज यू सी फॉर इंस्टेंस, अब वैन गो इज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट। वो आपने देखा होगा वैन गो की पेंटिंग बनी हुई है, उस पर कुछ नहीं 4 लाइनें लगाई हुई है उसने, एंड इट सोल्ड फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स। 4 लाइनें। जितना फेमस आर्टिस्ट होता है उतनी उसकी वैल्यू होती है ना पेंटिंग्स की। अब आर्टिस्ट कौन है ये तो देखें, Al Hayy Al Qayyum, he is the painter, he is the artist of the universe. So when we look, it is so beautiful when we look at our faces, stop looking at it against a fashion magazine cover. हम क्या करते हैं, अपनी शक्लों को देखते हैं, फिर हम फैशन मैगजीन पे ब्यूटी मॉडल्स को देखते हैं, उनके होंठ ऐसे, आंखें ऐसी, पूरे बाल ऐसे बने हुए। हम when we compare ourselves to that, we कहते हैं अच्छी नहीं लग रही मैं, अच्छी नहीं। Look at yourself through the eyes of Allah, and you can feel in this ayat the closeness of Allah. Allah saying, मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है। How close does it bring us to Allah? Allah saying, and where in the wombs? माँ के पेट के अंदर I fashioned you. माँ खुद नहीं बना सकती। माँ हमसे कितनी मोहब्बत करती है। माँ नहीं चूज कर सकती कि कैसी आंखें होंगी, कैसा नाक होगा, कैसा। अल्लाह सेइंग आई फैशन्ड यू इन द वूम ऑफ योर मदर। सुभान अल्लाह, इट इज सो ब्यूटिफुल। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हेन यू लुक एट योर फेस, डोंट एवर डाउट योर लुक्स। Don't look at your face through the looks of other people. We are always trying to beautify ourselves for others. Try and beautify yourself for Allah. वो अंदर से ब्यूटिफाई होगा। फिजिकल अपीयरेंस अल्लाह ऑलरेडी लव्स। अल्लाह तो परफेक्शन के लेवल पे क्रिएट करता है। अल्लाह ने किसी को इम्परफेक्ट नहीं क्रिएट किया है। अपनी हिकमत के हिसाब से जिसको जैसा बनाया उसको परफेक्ट बनाया है। हम देखते हैं ना लोग कंपैरिजन के हिसाब से, हम देखते हैं फैशन के हिसाब से, एंड स्पेशली इन रमजान। When Ramzan comes, it's such a beautiful, it is probably the happiest month for a Muslim, the month of Ramzan. हम क्या करते हैं रमजान के अंदर, सबसे ज्यादा बेहाल हम रमजान के अंदर होते हैं। So for Ramzan, I love to dress up and I love to get ready and I love to, it brings a happy feeling within you। और मुझे लगता है कि अल्लाह पूरा साल मैं दुनिया के लिए तैयार होती हूँ और मैं लोगों को दिखाती हूँ, और ये 1 महीना है जो मैं अल्लाह के लिए तैयार हो रही हूँ। नॉट बिकॉज अल्लाह नाउजुबिल्लाह हमारे आई लाइनर से या लिप पेंसिल से नहीं इम्प्रेस होता, लेकिन अल्लाह नियत जानता है। और नियत क्या है कि अच्छा इतर लगा लिया, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कर लिया, थोड़ा सा क्या, सारी जिंदगी हम जो लोगों के पीछे भागते रहते हैं ना, नाउ टर्न द अटेंशन कंप्लीटली टुवर्ड्स अल्लाह। मैं जो कर रही हूँ बस अल्लाह राजी हो, बाकी एवरीबडी एल्स विल टर्न ब्लर। And inshallah, this is how taqwa develops. So first of all, don't pay attention to comments of other people, and then don't discuss people. In Ramzan and beyond Ramzan, लोगों को discuss करना, ये red zone बना लें अपनी जिंदगी का, किसी के बारे में कोई, and this is going to be very difficult because unfortunately हमारी महफिलों की discussions है ही लोग, people are always discussing people, या लोगों के बच्चों को डिस्कस करते हैं। अल्लाह माफी, छोटे बेबीज को नहीं हम छोड़ते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको नहीं छोड़ते। उसका नाक देखा था, पिचका हुआ था, उसकी आई लैशेस देखी थी नहीं, एलियन जैसे उसके ईयर्स थे। नाउजुबिल्लाह, हमारी जबानें आर क्रूअल।
So Allah is telling us to grow up. थोड़ी सी मॉरल एथिकल ट्रेनिंग है इसके अंदर, वेयर वी शुड मूव अवे फ्रॉम दिस. जिसको जैसा बनाया है अल्लाह ने बनाया है, परफेक्ट बनाया है, ठीक है, एंड नॉट फॉर डेकोरेशन. दिस इज द ब्यूटी. अल हई अल कयूम डिड नॉट क्रिएट अस फॉर डेकोरेशन. हमें महफिलों की सजावट के लिए नहीं बनाया गया, हमें अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया है, ठीक है. तो अल्लाह क्या देखेगा, काम क्या किया. आंखें जितनी भी खूबसूरत है, लाइट टर्कोइज कलर की जनाब आपकी आंखें हैं, उन आंखों से आपने देखा क्या. वॉट वर यू लुकिंग एट विद दोज आईज. हिसाब उसका होगा कयामत के दिन, ठीक है. फिजिकल ब्यूटी का नहीं होगा, हिसाब होगा. ये आवाज, ये जबान, ये चलती अल्लाह के हुक्म से. एंड ही इज गिवन अस सच ब्यूटीफुल वॉइस बॉक्सेस, राइट. इस जबान से बोला क्या, ये होगा हिसाब कयामत के दिन. फिर ये कान, सुना क्या था, क्या हर वक्त गिबत, हर वक्त गॉसिप, ये सुनते रहते थे इन कानों से. अब्दुल्ला बिन उबई एंड अबू लहाब जो कुफार मक्का के सरदार थे, फिजिकली दे वर ब्यूटिफुल. वो अपने जमाने के टॉम क्रूज और मैट डेमन थे, बहुत खूबसूरत थे शक्लों के. बताए क्या फायदा हुआ खूबसूरत शक्ल का, जहन्नम की आग के अंदर हमेशा के लिए जलना. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट ब्यूटी. तो ब्यूटी से इंप्रेस नहीं होते. हम भी लोगों की ब्यूटी से बहुत इंप्रेस होते हैं. बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हा, ही वाज ब्लैक नीग्रो, ही वाज नीग्रो ब्लैक एंड नॉट प्रिटी एट ऑल ऑन हिज फेस. लेकिन अल्लाह की नजरों से देखो, अल्लाह लव्ड हिम. अल्लाह की नजरों से वो बहुत खूबसूरत थे. उनके गले के अंदर पट्टा डाल के मक्का की गलियों के अंदर उनको खींचा जाता था. ही वॉज ड्रैग्ड इन द बर्निंग सैंड, और वो हक अल्लाह कर रहे होते थे. तो अल्लाह जैसा कोई कदरदान नहीं है. अपने विजन्स को, पर्सपेक्टिव्स को हमें चेंज करना पड़ेगा. हमें कोई जरूरत नहीं है. वी आर नॉट करीना कपूर, कटरीना कैफ, कोई सुपर मॉडल, कोई ब्लॉगर बनने की हमें जरूरत नहीं है. हमें अपने आप को देखना है अल्लाह की नजरों में क्या वैल्यू बनी. मैं कितनी खूबसूरत बनी अल्लाह की नजरों में, मैंने कितने अच्छे अमाल कर लिए, कितनी अपनी जिंदगी चेंज की. तो that is the end result of that. And Allah is Al-Aziz, hikmat wala hai. So you see, on the concept on the dunya, and this is also a sales marketing strategy that they use. They say in a lot of places, they say beautiful people are successful people. Why they say that is because they want to sell their beauty products. वो कहते हैं आप रात को नाइट क्रीम लगाते रहो, दिन को डे क्रीम लगाते रहो, फिर आप लिप प्लम्बर्स भी खरीदो, फिर आप मस्कारास भी खरीदो, फिर there's 50,000 beauty product is a multi-billion-dollar industry. So how are they going to sell it? पहले वो आपको डराते हैं from being ugly. Actually अल्लाह की नजरों से देखो, I'm not at all ugly. मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. अल्लाह खुद गवाही दे रहा है that Al Hayy Al Qayyum, he fashioned me in my mother's womb. So if the perfect creator created me, how can I be ugly? I'm not ugly. अमाल ये देखो ना, अमाल ugly, उससे डर नहीं लगता. ऊपर फेशियल बोटॉक्स सब करा के ब्यूटीफुल शक्लें बना के बैठे होंगे परफ्यूम लगा के, अंदर दिल काले, उसको कोई देख ही नहीं रहा है. So our perspective, you see, this focus, Allah is taking the focus inside. Let's work on the inside. Let's change it up a little bit and stop being impressed by the artificial outside Barbie doll world that is created around us. ठीक है? ये गलत बात है. Good looking people are more successful. ये गलत बात है. ठीक है? Like I said, Abu Lahab भी तो good looking था. वो गया ना जहन्नम. Is that success? Actually, Quran changes this concept. Success है क्या? क्या है? मेरे बैंक अकाउंट सक्सेस है, मेरे बंगले सक्सेस है, क्या चीज है? दुनिया सक्सेस है. इफ आई बिकम द CEO ऑफ अ कंपनी, इज दैट सक्सेस? इफ आई गेट अ डिग्री, इज दैट सक्सेस? इफ माई किड्स गेट इनटू हार्वर्ड, इज दैट सक्सेस? नो. अल्टीमेट सक्सेस, if me and my family and my children get into heaven, that is success. आपका perspective, Allah's making you get ready for the long run, the marathon. Your eye needs to be, your goal needs to be on the future perspective, not on this little bit of present. ये छोटी सी दुनिया के लिए फिर दीन नहीं बेचेंगे, फिर अमाल नहीं बेचेंगे, फिर नमाजें नहीं छोड़ेंगे. जब पर्सपेक्टिव फोकस बन जाए, आई हैव टू गेट इनटू जन्नत. जैसे हमें शौक होता है ना हमारे बच्चों का ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, एंड आई हैव टू ट्राई माय हार्डेस्ट.
अब हमें अगर जन्नत की एडमिशन की फिक्र हो जाए तो सारी दुनिया के लाइफ गोल्स आपके चेंज हो जाएंगे, और जन्नत की एडमिशन की फिक्र हो जाएगी अपनी भी, अपने बच्चों की भी. एंड द अदर थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जिसने शक्लें बनाई हैं उसने किस्मतें बनाई हैं. यू नो, इट्स वेरी फनी, स्पेशली हियर इन साउथ ईस्ट एशिया. हमारे पास जो आंटियां हैं वो सबसे ज्यादा बातें करती हैं जब किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही होती. सबसे पहले वो ये कहती हैं, देखो ना, मोटी है इसकी शादी कैसे होगी, और पतली है इसकी शादी कैसे होगी, इसका नाक लंबा है इसकी शादी कैसे होगी. बहुत बातें करती हैं. जो शक्लें बनाने वाला है वो किस्मतें बनाने वाला है. आई हैव सीन द मोटिएस्ट ऑफ पीपल गेट मैरिड टू द बेस्ट ऑफ हस्बैंड्स एंड लिव अमेजिंग लाइफ्स. नथिंग डूइंग. कोई साइज 0 होना जरूरी नहीं है शादी होने के लिए, कोई सुपर मॉडल होना जरूरी. और मैंने दुनिया की हसीन तरीन लड़कियां देखी हैं जिनकी किस्मत में शादी नहीं लिखी है, वो बैठी हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है. तो क्या हो गया? दिस इज नॉट अगेन शादी. हम समझते हैं शादी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस. अगर शादी हो गई फिर नेक्स्ट मुसीबत होगी, अगर बच्चे नहीं हुए तो उसकी जिंदगी अजाब कर देंगे, बच्चे इज द नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस. नो, स्टैंडर्ड जन्नत है. चेंज द पर्सपेक्टिव. इट मेक्स यू, दिस इज व्हाट आई से, इस्लाम मेक्स यू वेरी ब्रॉड माइंडेड. ये लिमिटेड नैरो व्यू नहीं होता कि बस यहां पे ये 10-20 साल के अंदर क्या करना है. नहीं, जहां हमेशा रहना है. रेजिडेंशियल गार्डन्स जन्नत के चाहिए, फिर जिंदगी के अंदर चेंज आता है. एंड डोंट कंप्लेन अबाउट अल्लाह's क्रिएशन. एवरी पेंटिंग ऑफ अल्लाह's इज अ मास्टरपीस. एंड देन अल्लाह पाक इज सेइंग ही सेंट डाउन द बुक. ठीक है ना, कोई अल्लाह जैसा काम कर सकता है और ना ऐसा अल्लाह जैसा कोई कलाम लिख सकता है. लाइक द कुरान, दिस मास्टर, ही सेंट डाउन द मास्टरपीस व्हिच इज द कुरान एज वेल. All of his creation is a masterpiece. The Quran is a masterpiece. And the creation and Quran is mentioned together in these ayats. Why? Because the creation was created for ibadat. The purpose of being of me and you and every human ever created on the dunya was to recognize Allah and to worship Allah. We are created for ibadat, and ibadat is not possible without pondering on the Quran. It's not possible. And to following the hadith. तो अमल करना हमारी जिम्मेदारी है. कुरान पढ़ लिया, इबादत पता चल गई, वर्शिप पता चल गई. अमल, to convert, we have to convert our speech into action. And Ramzan is the perfect time. इस वक्त थोड़े फारिग है, और अगर फारिग नहीं है प्लीज अपने आप को फारिग करें. इफ्तारियों से, सहरियों से अपने आप को फारिग करें. This is the month to bring your iman one up. This is to take your game level one up. अगर जन्नत नंबर 20 में एडमिशन है तो 22 के लिए बढ़ना है. हर साल रमजान इसीलिए देते हैं अल्लाह हमें, टू इंक्रीज, ब्रिंग अप योर मुस्लिम गेम. इसके अंदर दुनिया का फोकस जितना हो सके उसको कम करें. ये पकोड़े समोसों से फोकस हटाएं. ये बहुत प्रेशियस महीना है. अब आयत नंबर 7 के अंदर अल्लाह पाक इज मेंशनिंग 2 sort of आयात. ठीक है, एंड 1 आयत इज मुकामात. मुकामात का मतलब होता है एक्सप्लिसिट. या इंग्लिश के अंदर इट्स क्लियर. एक्सप्लिसिट मुकामात की आयत जो हैं, दे डू नॉट चेंज. फॉर इंस्टेंस द आयत ऑफ तौहीद, ऑल द प्रीवियस बुक्स ऑल्सो हैड दिस आयत. दे डोंट चेंज विद टाइम, दे डोंट चेंज विद सर्कमस्टांसेस. फिर मुकामात के अंदर मॉरल लॉज दिए गए कुरान के अंदर. They don't change with time and circumstances. For example, zina was haram 1400 years ago and zina is still haram today. Now, so, और intelligence भी हमें यही बताती है ना कि ये गलत है. फितरत, natural human instinct tells us exactly the same thing. ठीक है कि ये गलत है. So we agree with these laws, and basically इस्लाम ये कहता है basic moral human मॉरल लॉज जो है, दे डोंट चेंज विद टाइम. ये नहीं है कि जिना 1500 साल पहले खराब था, आज इट्स ओके, इट्स 2021, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो, बेसिक मॉरल, नाउजुबिल्लाह, इट वाज रॉन्ग टू स्लीप विद योर फादर 2000 years ago, इट्स रॉन्ग टू स्लीप विद योर फादर इन 2021. ये अंदर से आई ना, किरात आई ना, गंदगी लगी ना आपको, तो गंदगी को गंदगी पहचान करवाना जो है ना, ये कुरान के लॉज बताता है. It tells us exactly something that is a dirty deed, stay away from it, ये हराम है. ठीक है, एंड देन शरीयत देता है. कुरान की आयतें जो मुकामात है, द क्लियर एक्सप्लिसिट शरीयत अल्हम्दुलिल्लाह इज क्लियर.
उसके अंदर कोई गोल गोल बातें नहीं है कि हाँ अगर यूं कर लोगे तब भी सही है और यूं कर लोगे तब भी नहीं। रोजा रखना है, सहरी से लेके मगरिब तक रखना है, फजर से लेके मगरिब तक क्लियर है। हदीस गिव्स अस द एक्सप्लेनेशंस, हुक्म इज इन द कुरान। दिस इज व्हाई आई से कुरान को हदीस के बगैर कोई नहीं समझ सकता। ना हमें नमाज पढ़ने का तरीका आता, ना वजू करने का तरीका आता, ना रोजा रखने का, ना हज, ना उम्रा करने का। All of the explanations of the hukam of the Shariat of the Quran are given in the Ahadith. So anybody who denies the Ahadith is not following the ahkam of the Quran. They cannot. They cannot. ठीक है? And शरीयत के अंदर किस चीज की we get निकाह, निकाह की शरीयत है, ज़कात की शरीयत है, नमाज, रोजा, हज, ठीक है? And we have to do amal on these because we are answerable for them. Answerable to what level? Now I'm going to tell you something that's really scary. You know that on the day of Qiyamah वो कहते हैं कि तराजू लाया जाएगा ना, तराजू is a weight scale, balance weight scale, तराजू खड़ा किया जाएगा. And that itself is scary. एक में good deeds रखे जाएंगे, एक में bad deeds रखे जाएंगे. वो कहते हैं कि उलमा अकराम say that the तराजू for the kafir will never be brought out. उसके good deeds और bad deeds weigh नहीं किए जाएंगे. Why? Because the first word, the first thing Allah is going to say is, where is my namaz? नमाज फर्ज कर दी गई है और काफिर नमाज पढ़ता नहीं है। जब काफिर नमाज पढ़ता नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं होगा, डायरेक्ट जहन्नम की टिकट है, डायरेक्ट। नमाज इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। हदीस का मफहूम आता है कि जो नमाज, जिसने नमाज छोड़ दी वो हम में से नहीं, मीनिंग वो मुस्लिम नहीं, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द उम्मा। ये नहीं कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शराब पीता है वो हम में से नहीं, ये नहीं कहा जो जिना करता है वो हम में से नहीं। कितने बड़े बड़े हराम काम है। इट्स नॉट मेंशन्ड। व्हाट इज मेंशन्ड इज नमाज। नमाज इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। अगर नमाज नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये हम में से नहीं है। सोचे अब जो मुसलमान के लिए वेट स्केल है, मैं क्यों कहती हूँ कि रमजान के अंदर नफलें ज्यादा पढ़ लें, सुन्नतें ऐड कर लें, पूरी जिंदगी के अंदर कोशिश करें। देखें होता क्या है, फर्ज नमाज अल्लाह का हुक्म है। वी जस्ट डिड अल्लाह पावर, हिज अथॉरिटी, हिज ग्लोरी। अल्लाह अर्श पे किस शान से बैठा होगा ना कयामत के दिन, विद ऑल ऑफ हिज पावर एंड अथॉरिटी एंड हिज सुपीरियोरिटी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये शान, एंड व्हेन ही इज सिटिंग देयर एंड ही सेज वेयर इज माय नमाज, नाउ द मुस्लिम हु स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, समझें कि कोई 25-50 हजार नमाजें कम है ऊपर नीचे जिंदगी के अंदर। कहीं यूरोप घूमने चले गए, वहां थोड़ी नमाज पढ़ते हैं सारी, कहीं चले गए वहां थोड़ी पढ़ते हैं, जो मिस कर देते हैं नमाजें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना रहमान है, वो कहेगा अच्छा इसकी कोई सुन्नतें हैं, वो फरिश्ते कहेंगे जी सुन्नतें हैं। अल्लाह कहेगा लेट्स मेक देम फर्ज, अपग्रेड देम, इनको फर्ज कन्वर्ट कर दो, चलो पूरी करो, नमाजें पूरी करो। अब जब सुन्नतों में भी कम पड़ गई, फिर उसके बाद अल्लाह कहेगा अच्छा नफली है, तरावियां हैं रमजान की, तहज्जुदों की नमाजें हैं, जो नफल है इसकी जिंदगी में वो भी ले आओ सारी। अब उसको भी कन्वर्ट कर देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत फर्ज के लेवल पे कयामत के दिन। हमारी फर्ज नमाजों को पूरी करने के लिए नमाज इज एक्चुअली द एक्सेस कार्ड। जब एग्जाम बैठने जाते हैं ना ओ लेवल्स, तो वो एडमिट कार्ड मिलता है, उसके बगैर आप एंटर नहीं कर सकते। उस फर्ज नमाज के बगैर हिसाब किताब शुरू नहीं होगा ऑन द डे ऑफ कयामत। इफ वन ऑफ अस, may Allah save us from this, if we end up standing in front of Allah and our namaz is lacking, हमारी फर्ज नमाजें पूरी नहीं है, then Allah रब्बुल इज्जत will say जाओ मेरी नमाज पूरी करके लाओ। और कयामत के दिन तो नमाज नहीं होगी, you can't read नमाज on हशर का मैदान, तो पूरी कैसे होंगी? Those people will have to fall into hell, burn, pay off their namazes that they missed and then go back and stand in front of Allah। फिर तराजू खड़ा होगा, फिर नेकियां गिनी जाएंगी, फिर गुनाह रखे जाएंगे, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस मामले को आसान मत समझे। One thing we have to work, because a lot of us are mothers here, extra hard for is बच्चों के अंदर नमाज की आदत पक्की करते हैं। देखिए, the only thing we can do is give them a good education, a sound teaching of the deen, and then you have to let them go. They have to go out into the world. मगर अगर आपने उनको ये दे दिया ना, खुदा खौफी दे दी, नमाज की आदत दे दी, they will always end up making the right decision inshallah. This, and even for us, हमारी डिसीजंस चेंज हो जाती है खुदा खौफी के साथ।
being connected to the Quran. And the other maqamat, the clear ayats in the Quran, they're also history. History will not change. Events in the Quran are 100% true, and there is no theory of science or of excavations that can change these events that are mentioned in the Quran. अब the second sort of ayat that is mentioned here in ayat number 7 is mutashabihat. Mutashabihat are ayats that speak of the unseen world, and we haven't seen the unseen world. गायब के हालात जब अल्लाह हमें बताता है कुरान के अंदर, हमें क्या पता? जैसे अभी पीछे आयत आई थी, क्या वो मैंने आपको बताया तौरात अल्लाह ने अपने हाथ से लिखी है, तो अल्लाह का हाथ कैसा हमें तो नहीं पता. हदीस के मफहूम में आता है अल्लाह का हाथ है और दोनों हाथ दाएं हैं, राइट हैंड्स हैं. अल्लाह हैज ओनली राइट हैंड, नो लेफ्ट हैंड. अब अल्लाहु आलम, दे डोंट लुक लाइक दिस. वी आर लिमिटेड, आवर इमेजिनेशन इज लिमिटेड. इस कुरान की आयत में कहा क्या जा रहा है? जब समझ नहीं सकते हो, जस्ट एक्सेप्ट इट, बिकॉज फ्रॉम योर इंटेलिजेंस you have no observation of it, therefore you will never be able to imagine it. When you cannot imagine it, the best thing you can do is accept it as Allah has told it. ठीक है? अब होता क्या है कि we can only partly understand it from our imagination, not get the whole picture. तो for instance जन्नत है, जन्नत का जिक्र है कुरान के आयतों के अंदर, मुतशाबहात में से है ना. कैसी है, उसके ग्रेप्स कैसे हैं, उसके पैलेसेस कैसे हैं, उसके रिवर्स कैसे हैं, वल्लाहु आलम, सिर्फ अल्लाह ही जानता है. वी कैन ओनली इमेजिन ग्लिम्पसेस ऑफ इट. इट इज गोइंग टू बी वे मोर अमेजिंग देन व्हाट वी कैन इमेजिन, बिकॉज वी आर लिमिटेड. लाइक अगर आप, देयर इज अ चाइल्ड हु इज 1 year old एंड उसको आप बताना चाह रहे हो कि किस तरह कोई रिजॉर्ट है, 7 star रिजॉर्ट है और उसमें ये लगा हुआ है, गोल्डन शैंडियर्स लगे हुए, 1 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं. तो हम इन आयतों के आगे 1 साल के बच्चे ही हैं. हमारी इंटेलिजेंस जो है ना वो बहुत लिमिटेड है. ठीक है? फिर जहन्नम है. जहन्नम कैसी है, कितनी खौफनाक है, अल्लाह हमें कभी भी ना दिखाए. उसके अंदर कुरान के अंदर आता है ना छोड़ेगी और ना बाकी रखेगी. ये है जहन्नम, और जिस्म को झुलस देने वाली है. अब इसके अंदर एक आयत आती है सूरह मुदस्सिर के अंदर, या सूरह मुदस्सिर, दैट देयर आर 19 गार्डियंस ऑन हेल, 19 angels on hell. वो कैसे एंजल्स हैं, वो क्या, उस नंबर का क्या रेफरेंस है, वी डोंट नो. हदीस 19. ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंड वाज दैट सम पीपल, अब दिस नंबर 19 इज मुतशाबिहात. सम पीपल जिनके दिलों के अंदर टेढ़ होता है ना, देयर हार्ट्स आर ट्विस्टेड, वो पीछे पड़ते हैं सिर्फ मुतशाबिहात. वो कुरान की आयतों में से दे ओनली पिक अप मुतशाबिहात एंड देन दे स्टार्ट डिगिंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर टू फाइंड अनदर दुनिया. नाउजुबिल्लाह. जो सीधे सीधे अहकाम है उनको फॉलो करो, और जो मुतशाबिहात है उनको एक्सेप्ट कर लो, बात खत्म हो गई. नहीं, वो इसके अंदर पीछे पड़ते हैं. तो एक देयर वाज एन उलेमा. अब व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस आलिम ट्राइड टू गो आफ्टर दिस नंबर 19, एंड ये जो नंबर्स का साइंस है ये ऑकल्ट साइंसेस में से है. ठीक है? वो 2 को ऐड करते हैं, 3 को ऐड करते हैं. ही ट्राइड टू अप्लाई द कोड ऑफ 19 ऑन द कुरान. ठीक है? मुतशाबिहात के पीछे पड़ा. मैं आपको बता रही हूं कैसे तबाह हुआ. था तो आलिम कुरान का, ही वॉज एन आलिम ऑफ द कुरान. ही गॉट आफ्टर दिस 19 नंबर, एंड फिर उसके बाद सूरह तौबा जो है वो इसके 19 के कोड में पूरी नहीं आई. उसने सूरह तौबा निकाल दी कुरान से. उसने कहा इट डजंट फिट into the code. So nauzubillah, you can't put your own mathematical formulas on the Quran and then expect the Quran to fit into that. There is no formula to put in the Quran. Quran itself is the life-saving formula. ठीक है? So then they ask, अब जैसे कुरान के अंदर like I told you, Allah's hands, Allah's face is mentioned. अब ये कैसे हैं, इसके अंदर deep dig नहीं करना चाहिए. ठीक है? ये मुतशाबिहात में से है. And just accept it as it is. और अगर डीप करते हैं, अक्सर लोग भटक जाते हैं. अल्लाह ने इस कुरान के अंदर, इस आयत के अंदर 7 के अंदर यही कह रहे हैं ना, दैट वेयरइन लाइज मुकाहमात वर्सेस दैट आर द उम्मुल किताब, others that are mutashabihat. As for those who have crookedness in their hearts, they pursue those that are mutashabihat. वो जाते ही उसके पीछे हैं. अल्लाह कह रहा है मत अपने दिलों को खोलो कुरान की आयतों के लिए, मुतशाबिहात के पीछे मत पड़ो. ठीक है? एंड आखिरत एंड कयामत के ऊपर यकीन रखते हैं. ठीक है?
अब मिर्जा बशीरुद्दीन जो है वो गुलाम अहमद कादियानी के स्टूडेंट थे. ही ट्रांसलेटेड, ठीक है, एंड ये जो आप सल्लम को खातिमुन नबी कुरान के अंदर लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज खातिमुन नबी, ही इज द सील ऑफ प्रॉफिटहुड, ही इज द लास्ट प्रॉफिट. When he translated Khatamun Nabi, he changed the meaning. He said, no, Khatamun Nabi means you have to believe on Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a prophet, but then later on many prophets can come. खत्म कर दिया, कुरान की आयत को ट्विस्ट कर दिया. बताया ये जा रहा है कि हदीस के बगैर अगर कुरान की तफसीर आप लेंगे, anybody tries to translate the Quran, then they can change it. So you have to be very aware. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने क्या कहा इस आयत के बाद? Then ulama, they study it according to the ahadith. That's how the Quran is translated, not out of their own whims and fancies. ठीक है? And अब ये जो इसको चेंज करते हैं आयतों को, मुझे बताएं कि इल्म भी है इनके पास और अकल भी है, दोनों चीजें हैं. दोनों चीजें लगाई किस चीज में? Rather than following the word of Allah, they put it in changing the word of Allah. So Allah is telling us to be aware of that. ये नियतों का फसाद है जो अल्लाह ने एक्सपोज किया है इस आयत के अंदर, एंड देन इट क्रिएट्स अ लार्ज स्केल फसाद. देन पीपल स्टार्ट फॉलोइंग देम, देन पीपल स्टार्ट बिलीविंग देम. जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का मिरेकल है, हदीस को डिनाई करते हैं कुछ लोग और वो मिरेकल्स को भी डिनाई करते हैं. प्रॉफिट्स के ऊपर जो मिरेकल्स है कुरान के अंदर, इट्स मेंशन दैट मूसा अलैहिस्सलाम्स राइट हैंड, when he used to put it under his shoulder, his armpit, when he used to take it out, it would be glowing white. लाइट निकलती थी इसमें से. दैट इज द मिरेकल ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम. भाई सीधी तरह मुतशाबिहात को एक्सेप्ट कर लें? नहीं. उन्होंने कहा इसका मीनिंग क्या है कि जब वो अपनी कौम के पास जाएंगे तो कौम वाइट और ग्लोइंग हो जाएगी. हाथ और कौम को उन्होंने वर्ड्स को चेंज कर दिया. ठीक है? एंड क्रिश्चियंस डिड द सेम थिंग. क्रिश्चियंस चेंज देयर वर्ड्स, दे चेंज द मीनिंग्स ऑफ देयर बुक्स. और मुतशाबिहात को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं? सिर्फ तदब्बुर के लिए. टू पॉन्डर ओवर द कुरान वी कैन डिस्कस इट. ठीक है? अब फॉर इंस्टेंस अलिफ लाम मीम, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं मुतशाबिहात को, बट विद इन द लिमिट्स ऑफ शरीयत. ठीक है? एनीथिंग दैट डज, वी हैव टू मेक श्योर दैट इट डजंट क्लैश विद द कुरान एंड द हदीस. ठीक है? सम पीपल दे से हदीस इज नॉट वैलिड. There is a very popular scholar nowadays, I'm not going to name names, but उन्होंने हदीस को निकाल के, है मुनकरे हदीस भी हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं, उन्होंने हदीस को नल एंड वॉइड कर दिया. कहते हैं we don't need to look at the hadith at all. जब हदीस को नल एंड वॉइड कर दिया, now slowly over time he is becoming very popular amongst our youth because he is very flexible with making sharab halal. He is very flexible with making interest halal. He's very flexible with no hijab. Yeah. He says no hijab. Hijab was only for the Prophet's wives. Nauzubillah. सब कुछ जब डिस्काउंट कर दिया तो दीन को इतना ट्विस्ट कर दिया. देखिए जो आजकल लोगों की नफ्स है, जब उसके ऊपर फिट होगा वो कहेगा यार दिस इज द इस्लाम आई वांट, आई डोंट वांट द डिफिकल्ट वर्जन, आई एम गोना टेक दिस 2.0 इस्लाम. दिस डूड इज सेइंग व्हाट ही इज सेइंग, इट मेक्स सेंस. यही वाला मुझसे होगा. तो नाउजुबिल्ला खुद भी जहन्नम के अंदर भटकेंगे और पूरी उम्मत को भी साथ लेके जाएंगे. एंड द यूथ वी हैव टू बी वेरी, देखिए हक को हक माने, whether you're doing it or not right now. नियत करें अल्लाह से, अल्लाह इंशाल्लाह one day I want to follow everything that's in the Quran, but right now because I'm weak, whatever I'm doing Allah, I'm trying. ठीक है? लेकिन कभी भी हक को डिनाई ना करें. No, this can't happen. Why is this hijab here? अल्लाह से पूछेंगे नाउजुबिल्ला, व्हाई इज दिस, व्हाई इज हिजाब पे. और ये नहीं शराब को भी बस वहां तक पी ले जहां तक नशा नहीं है. हाँ, इंटरेस्ट है, ये बहुत फेमस है. वाइन इज ओके बिकॉज वो आपको नशा नहीं देती. भाई इजिप्ट के अंदर उन्होंने एक फतवा दे दिया था, वो तो उलेमा बहुत मशहूर हो गए थे, सब उनको फॉलो करना शुरू हो गए थे बिकॉज उन्होंने कहा नो, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इंटॉक्सिकेट यू कैन ड्रिंक योर वाइन्स, इट्स परफेक्टली ओके. तो बेसिकली व्हाट दे वांट टू डू इज टेक इस्लाम एंड मेक अ वेरी स्वीट वर्जन दैट एक्सेप्ट्स हराम एज हलाल एंड देन अप्लाई दैट इन देयर लाइव्स. दैट्स नॉट बीइंग मुस्लिम, that's not being momin, that's nauzubillah twisting the book
to suit your own whims and your wishes, that is not being a better Muslim, nauzubillah, and we have to be aware of it. We have to make our kids aware of it. ठीक है? For some people, they changed the meaning of the Quran and they proved communism through it, nauzubillah, when communism was popular. They used the Quranic ayats to prove communism, nauzubillah. ये सब फितने हैं, ठीक है? And Ibn Abbas said that the tafsir of the Quran is at 4 levels. One is that no one cannot know the basic level of the tafsir of the Quran because that is what is needed for amal and practice. Basic level pata hona chahiye Quran ki tafsir ka. The second level is like the Arabs, they understand the meaning and the depth and the grammar of Arabic language. That's the second level of the tafsir. The third level is when the ulama make the tafsir of the Quran. Then they know how to translate the word in context. ये आयत कहाँ उतरी थी? What was Prophet ﷺ doing at that time? What was the situation around him? What is this ayat speaking about? Reference to context के साथ translation ulama करते हैं of the tafsir. ठीक है? ये तो हो चुका है ना. And the fourth, हाँ नहीं, अभी भी there are people who are still pondering. Quran is an ocean. We will never be done. This is the level 4. The level 4 की tafsir जो है, the depth of the Quran, nobody will ever be able to reach it. Nobody will ever be able to reach it. Only Allah knows the depth of the tafsir of the Quran. We can only keep digging like layers of an onion. It will keep peeling and we will keep digging deeper. Like some people, they say, देखिए science में periodical table होता है, ठीक है? केमिकल्स का टेबल होता है. अब ये जो हमारे हरूफ मुकातात है, मे बी एट सम टाइम इन द फ्यूचर somebody is able to crack the code and there might be some scientific law in it. There might be some azim hikmat of Allah in it. Wallahu alam. हरूफ मुकातात पे हम इसलिए साइलेंट है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम didn't tell us the meaning. हमने बगैर पूछे अलिफ लाम मीम जहां जहां लिखा है उसको अलिफ लाम मीम पढ़ा है. ठीक है? अच्छा, किसने बताया कि अलिफ लाम मीम पढ़ना है? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. वरना हम अलम पढ़ते हैं ना. अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन द रिसाइटेशन, हम इतने मोहताज हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि हम तो कुरान भी नहीं पढ़ सकते उनकी बताए बगैर. तो एग्जैक्टली द वे दैट ही टोल्ड अस. ठीक है? एंड हदीस का मफहूम आता है. प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इफ समवन just tries to translate and do the tafsir with his own intelligence, meaning replace the hadith, remove the hadith with his own intelligence, to phir they can confirm their place in hell, consider their place in hell confirmed. ठीक है? So you cannot translate the Quran without the hadith. तो दुआ करनी चाहिए सबसे पहले कि अल्लाह पे भरोसा करना है. We can't even trust our own intelligence or our own ilm, और सिर्फ अल्लाह बचाता है. एक अल्लाह वाले फकीर थे, वो मैंने आपको बहुत दफा कहा है कि शैतान जो है ना वो उलेमा को या अल्लाह वालों को ऐसे नहीं छोड़ देता कि बस ठीक है अब तो ये कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम हो गए, अब इनको तंग नहीं करना. वो उनको ज्यादा डेंजरस अटैक करता है. एक अल्लाह वाले फकीर थे, शैतान उनके पास आया और ख्वाब में आया और उनको कहा कि देखो तुम्हारे ऊपर नमाजें जो है ना वो माफ हो गई हैं. अब वाह तुम किस दर्जे पे पहुंच गए अल्लाह के, ऐसी तुमने दोस्ती पकड़ी अल्लाह से, अब तुम्हारे ऊपर सारी नमाजें माफ हो गई हैं. उसने कहा अच्छा. उसने कहा कैसे नमाजें माफ हो गई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो नमाजें माफ नहीं हुई थी. क्या हो गया? तुम शैतान हो. पहचान गए? अब जाते जाते शैतान ने सेकंड वार किया. उसने कहा वाह तुम्हारे इल्म ने तुम्हें बचा लिया. उसने कहा, अल्लाह वाला फकीर था, वो भी माशाल्लाह पक्का था. उसने कहा मेरे इल्म ने नहीं बचाया, बचाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह ने मुझे बचाया है. तो ये अटैक्स, ये सो वी हैव टू हम्बल आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अल्लाह और फिर अल्लाह से दुआ मांगते रहे. फिर क्या मुश्किल है? हर वक्त हिदायत की दुआ मांगते रहे. ठीक है? एंड there can be no doubt about akhirah. 100% yaqeen on akhirah. This helps to correct amal. I've seen a lot of people who know about the Quran, they know about the hadith, they know about amal, मगर वो कहते क्या है कि भाई अल्लाह गफूर रहीम है ना, कुछ नहीं होगा, सब स्वीट ऐसे ही माफ होके सब जन्नत के अंदर चले जाएंगे, कोई नहीं अल्लाह ने हिसाब लेना. तो वो अमल से फारिग हो गए. उन्होंने कहा क्यों मैं इतने मुश्किल गर्मियों के रोजे रखूं और क्यों मैं नमाजें पढ़ूं और क्यों पूरी रात जागूं रमजान में. डिस्काउंट हो जाता है दीन.
the yearning and the need to do practice goes away if you don't have akhirah clear in your vision, or if you make a twisted a version of akhirah in your minds. And now ayat number 9 to 15. I will do as much of it as I can, and then we'll continue inshallah. Our Lord, surely you shall gather mankind together in a day wherein there is no doubt. Surely Allah never fails to meet a tryst. Verily the riches and the progeny of the disbelievers shall not avail them at all against Allah. These people will be the fuel of fire. Their ways are just like the people of Fir'aun and those before them. They falsified our revelations, so Allah sees them for their sins. Allah is severe in punishment. Say to those who believe, you shall be vanquished and gathered in hell, which is the worst of beddings. Indeed, there was a sign for you in two groups which met. One group fought in the way of Allah, and the other were disbelievers who saw them as twice their number with their very eyes. Allah strengthens with His aid whomever He wills. Truly, in this is a lesson for those with foresight. Beautified for mankind has been made the love of joys from women, children, large heaps of gold and silver, branded horses, livestock and plantations. These are the comforts of the worldly life, and with Allah is a most excellent abode. Shall I inform you of something better than that? For those who fear Allah are gardens by their Lord, beneath which rivers flow, wherein they shall abide forever, and the pure spouses and Allah's pleasure. Allah sees His bondsmen. Now we'll try and do as much of this as we can today. Ayat number 9 to 15, ilm wale are mentioned, and Allah Pak is saying, ilm wale jo hai, they don't welcome doubts. They don't welcome suspicions. Okay? And Allah says Allah is Al-Wahhab, which means that He is the one who helps them with His special rahmat. Allah is the one who is maintaining them steadfast. And ladunka, the Arabic word ladunka means without any sabab. अल्लाह की जो मदद आती है, कभी कभी असबाब होते हैं दुनिया के, कभी कभी अल्लाह saves them from the tear of the heart with His गायबी मदद. गायब से मदद करता है अल्लाह. And Allah sends angels, and angels they give the help and they give good ideas. जब नेकी का इरादा आए ना दिल के अंदर, कभी रमजान है, हमारे पास काफी नेकी के गुड आइडियाज. अच्छा, लेट मी जस्ट मेक अ लिटिल पैकेट ऑफ फूड एंड गिव इट आउटसाइड टू समबडी. मैं इफ्तारी बांट देती हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ आते रहते हैं नेकी के आइडियाज. अब उसको पहचाने, वो फरिश्ता है जो अल्लाह ने भेजा है. इतना हमारा दिमाग नहीं चलता. अल्लाह ने भेजा है दिल के अंदर, इसको ऐलान कहते हैं. वो ऐलान करता है कि तुम ये कर लो ना. एंड ही मेक्स इट सीम लाइक नहीं इजी है, मुश्किल नहीं होगा. शरद कहता है नहीं इतनी मुसीबत होगी, खुद भी रोजे में बैठी हुई हो, छोड़ो क्या करना. देन दिस स्ट्रगल स्टार्ट्स. बट नाउ रिकॉग्नाइज दैट अल्लाह सेंट द एंजल टू गिव यू द गुड आइडिया इन द फर्स्ट प्लेस. और अल्लाह खुद ही, ऐसे लगता है जैसे हमारे हाथों से खुद ही वो हमारी जन्नत बनवा रहा है ना, हमें ये आइडियाज भेज के. एंड देन हदीस का मफहूमात की दुआ मैंने आपको बताई, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक. बहुत पढ़ें, और सबसे ज्यादा तहज्जुद के या तरावियों के, जो नफली इबादत होती है सुन्नत या नफल, उसके सजदे के अंदर यू कैन मेक दुआ. एंड इट इज बेस्ट टू मेक दुआ फ्रॉम द दुआज ऑफ द सुन्नत. तो उसके अंदर ये बहुत पढ़ें, या मुकल्लिबल कुलूबी. जी आप दुआ मांग सकते हैं, बट नफल या सुन्नत के अंदर, फर्ज नमाज के सजदे में नहीं. हदीस की दुआएं, कुरानी दुआएं, हदीस की. अच्छा, एंड नहीं ये तो हदीस की दुआ है, या मुकल्लिबुल कुलूबी सबिक, इसके अंदर है जो मैंने आपको बुक दी है. यस, इसके अंदर है. ठीक है. अच्छा, फिर मिल्लदुनका का मतलब होता है कि अल्लाह की शान रहमानी है, दैट इज मेंशन्ड हियर. अल्लाह की तरफ से है जो, फॉर इंस्टेंस अगर हम कुरान सुन रहे हैं आज, या मैं कुरान पढ़ा रही हूँ आज, दिस इज ऑल फ्रॉम अल्लाह. व्हिच इज व्हाई व्हेन समटाइम्स पीपल टेल मी, मैं कहती हूँ इट्स फ्रॉम द रहम ऑफ अल्लाह. ना खुद मैं ये पढ़ सकती थी, ना मैं किसी को पढ़ा सकती थी. सो वी शुड रिकॉग्नाइज, ताकि खुद हम्बल रहें अपने में. नहीं भाई मैं तो बहुत नेक बीबी हो गई हूँ, ये भी ख्याल शैतान डालता है फिर. सो वी हैव टू recognize that it is from the rahmat of Allah. And kafir, you have to understand, in the face of danger, kafir runs toward what? He runs towards his wealth and his children.
उसकी सिर्फ 2 सिक्योरिटीज है काफिर की, अल्लाह उसकी सिक्योरिटी नहीं है. One thing that I want to mention over here that we need to work on very hard on our youth is, because I try and speak to a lot of young teenagers, my daughter's a teenager, I try and speak to a lot of youth about Allah, about making du'as, about keeping some connection going, whether they're doing all of deen or not, or shariat, or वो तो बाद में होगा ना, अभी while they're young. And one of the scariest things that I recognized was that they are not in the habit of making dua at all. When they get into trouble, when they get bad marks or when they get into some major trouble, उनके तो आजकल मसले भी बहुत सीरियस होते हैं, या किसी की अम्मा बीमार हो गई या कुछ भी हो गया, और मैं कहती हूँ did you make dua? They say no. Why? It's a simple denial. हमें अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से आदत ये है, चाहे हम नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, जब मुश्किल आती थी अल्लाह के आगे रोने तो बैठ ही जाते थे ना कि अल्लाह मुझे बचा ले. So there is a backing, there is this great hope for us where we can fall back and turn back to Allah and beg Allah, and Allah is the most powerful. They have no concept of this because they flatly say, why? We don't do anything for Allah. Why would He do this for us? So na'uzubillah, this is something that we need to connect the youth to Allah. And we need to make them recognize that Allah doesn't work like makhluk. He doesn't work, I scratch your back, you scratch my back. ये तो दुनिया का मामला है. अल्लाह के लिए अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी जिस दिन जिस वक्त अल्लाह के आगे हाथ उठा के मांगोगे, अल्लाह जरूर सुनता है, अल्लाह जरूर देता है. We have to give them and explain to them the power of this dua. They have to have this to fall back on at least in their lives, and then inshallah to come towards deen. बहुत काम है ना, इसीलिए तो कह रही हूँ, हम काम करेंगे, फिर हमारे आगे 100 करेंगे, फिर उसके आगे 1000 करेंगे. ये काम, we can't be closed in our own personal lives. There's so much that needs to be done for Deen Islam, and Islam is downtrodden today. It's not a popular movement, and because it's not a popular movement, kids तो वो देखते ना popular क्या है, popular तो अमेरिका है, तो सब भागे भागे वहीं चले जा रहे हैं, right? They're smart. वो कहते हैं भाई दुनिया में क्या success दे रहा है. There was a time when Islam was successful in the dunya, and when Muslims were the best people in the dunya. When we were practicing Muslims, when we were Momins, इस्लाम के systems में कोई गलती नहीं है, हमारी application में गलती है. We are not applying the deen wholeheartedly. अच्छा, then on the day of judgment, मोमिन किधर जाएगा? कल्बे सलीम लेके खड़ा होगा in front of Allah. What is kalbe salim? And this is, by the way, all you need. This is all you need, a pure heart. A pure heart to stand in front of Allah on the day of Qiyamah for questioning. Wealth doesn't prove intelligence. हमें लगता है जो अमीर है वो बहुत इंटेलिजेंट है, फिर हम उनको देखते रहते हैं, कहते हैं अच्छा अमीर है, शराब पी रहे हैं तो ठीक है, पर सही होगा ना. This is how things become acceptable. Trends are set at the elite class and trickle down. अच्छा खाली शराबियों का क्वेश्चन होगा? क्यों? जब हमने ऊंची शलवारें पहनना शुरू की थी टखने से ऊपर, हमारी मासियों ने नहीं पहनी थी. सवाल होगा कि नहीं होगा? ट्रेंड सेटर्स तो हम है ना, नाउजुबिल्लाह. इफ यू आर वेल्थी, फिर आपका सवाल भी तो होगा कि तुमने क्या ट्रेंड सेट किया, कितने लोगों को अल्लाह की बात बताई, कितने लोगों को तहज्जुद पढ़ना सिखाई, कितने लोगों को तुमने हदीसें बताई. अभी अगर कुछ भी नहीं कर सकते, द इजीएस्ट लेवल इज टेक एन ऑथेंटिक हदीस एंड पोस्ट इट ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट. ये तो रोज कर सकते हैं रमजान में. बोनस पॉइंट्स तो बनाए ना, कुछ तो हम दावा का अपना काम शुरू करें इंशाल्लाह. एंड मेरी एक फ्रेंड ने डाला था अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो उसको सबने मैसेज करना शुरू कर दिया कि तुम छोड़ दो नबीला की क्लासेस. देखा, हमने कहा था ना तुम फंडू हो जाओगी, तुम चेंज हो जाओगी. उसने कहा मैंने किया क्या है, मैंने तो खाली हदीस पोस्ट की है, वो भी फेसबुक के ऊपर. मैं कौन सा तुम्हारे घर आ गई हूँ भाई. दिस इज द रेजिस्टेंस, the resistance to listening to something good. हम कहते हैं बिकॉज यू सी सब एक जैसी चीज कर रहे हैं ना, तो किसी को बुरा नहीं लगता. जब एक खड़ा होके इस्लाम की कोई बात बताता है, वो सबको बुरा लगता है. वो कहते हैं बैठ जाओ, चुप कर जाओ, शुश, let us live our lives, because it's convenient. And lives have become so engrossed in sin कि अब जब मैं उनको बताती हूँ कि ये तो एक्चुअली गुनाह है, तो वो कहते हैं लो भाई, फिर आ गई जिंदगी हमारी मुसीबत करने के लिए ये. So you have to see that yes, it may be inconvenient, but it's absolutely necessary, because if we don't do it now, then there is nobody to save our future generations.
हमारी तो नस्लें तबाह हो जाएंगी। इतने ज्यादा कंप्लेसेंट एंड कन्वीनियंट हो गया है सिन कि उसकी रिकग्निशन भी खत्म हो जाएगी उनको। सो दिस इज समथिंग इंशाल्लाह दैट वी नीड टू अटैच आवरसेल्व्स टू वर्क टुवर्ड्स। एंड देन अल्लाह पाक इज सेइंग कि ये काफिर जो है दे अंडर एस्टिमेट अल्लाह, दे अंडर एस्टिमेट, दे थॉट दीन इज यूजलेस। आज भी बहुत लोगों का ये इमेज होता है, जब वो किसी को देखते हैं ना पूरे हिजाब में, तो दे लुक एट देम एंड दे से व्हाट अ वेस्ट। देखो अच्छी खासी थी, वहां की पढ़ी हुई थी, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी एजुकेटेड, लुक एट व्हाट शी इज डूइंग नाउ, शी इज डूइंग हिजाब। अंडर एस्टिमेट किया ना, वो क्या कर रही है, वो तो अल्लाह का हुक्म पूरा कर रही है। शी इज डूइंग इट आउट ऑफ द लव ऑफ अल्लाह, उसको अल्लाह की रजा चाहिए। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? असल में प्रॉब्लम क्या होती है, आई हैव ऑलवेज फाउंड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम, जिससे मुझे रेजिस्टेंस आती है ना कि क्यों कर लिया तुमने हिजाब, क्यों कर लिया, कभी आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आती है। मैं दिल चाहता मैं उनको झप्पी लगा दूं, बिकॉज एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग इज उसके दिल के अंदर खुद बहुत चाह है, वो करना चाह रही है, वो बहुत मजबूर है दुनिया के हाथों, वो बहुत डरती है दुनिया से, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी इज एक्चुअली फीलिंग जेलस कि इसने कर लिया और मैं। सो समटाइम्स पीपल डोंट नो हाउ टू पुट दैट इनटू वर्ड्स एंड दे स्टार्ट फाइटिंग यू कि बस ये तो कोई जरूरी नहीं है और ये तो कोई हुक्म नहीं है। एक्चुअली उसके दिल के अंदर खुद चाहे, वो करना चाह रही है अल्लाह के लिए। सो बी काइंड टू सच पीपल। इफ यू फेस रेजिस्टेंस, उनके ऊपर आपको तरस आना चाहिए, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह इसको हिम्मत दे। नहीं, मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ। माय टीचर सेज द सेम थिंग, शी सेज समवेयर इनसाइड देम, दिलों का हाल तो हमें नहीं पता ना, हो सकता है समवेयर इनसाइड देम उनका खुद दिल कर रहा हो और वो कह लो भाई ये पहुंच गई कुरान क्लास और मैं इतनी तहज्जुदें और नफलें पढ़ने वाली और मैं ना पहुंच सकी कुरान क्लास। Some people are struggling in their lives. Some people are scared. Peer pressure है, social pressure है। ये कैसा इस्लामिक मुल्क है जहां इस्लाम फॉलो करना मुश्किल है? बताएं कितना मुश्किल है। आप खड़े होए, all of I got resistance. Everybody gets resistance. क्या हो गया? बस नॉर्मल रहना, बस ओवर मत हो जाना, तालिबान मत बन जाना, फड्डू मत हो जाना। ये होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसे सिचुएशंस हैं भी जहां फिर लोग बन जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट, तो उससे भी लोगों को डर लगता है। लेकिन डर डर के लोगों ने क्या किया, कुरान ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा हमने करना ही नहीं है, बहुत ही मसला है, कौन सी क्लास में जाएं, किसकी बात सुने, किसकी ना सुने, कौन सा फिरका है, कौन सा नहीं है, किसी की भी बात सुननी है, कुरान और हदीस के अंदर है। लिसन टू एनीबडी यू वांट टू, जो कुरान और हदीस के अगेंस्ट है उसको छोड़ दे, बाकी आप किसी की भी बात सुन सकते हैं, अच्छी बात आप सबसे ले सकते हैं। Just make sure that it is within the limits of the Quran and the Sunnah. Because I think half my life I struggled with this myself. किसकी सुनूं, किसकी ना सुनूं, कौन सी कुरान क्लास में जाऊं, किसको टीचर बनाऊं। मैं आधी जिंदगी इसमें I wasted half of my life from these fears. Because of these fears you can't go and become a better Muslim and you can't read the Quran. फिर मैं कुरान इंग्लिश की ट्रांसलेशन तो पढ़ती थी, वो तो कुछ समझ में ही नहीं आता। You can't interpret the Quran. Word to word in translation does not tell you anything about the depths of the Quran or the meaning or the Shariat of the Quran. ठीक है? फिर Pharaoh is mentioned here. Pharaoh was the ace rebel of Allah. और जब कहा जा रहा है ना रॉयल वी यहाँ पे यूज किया जा रहा है, दैट ये शहाना अंदाज है, ठीक है, कि हमारी आयतों को झुठलाया किसने? फिरौन ने। आयत अल्लाह की कुरान की आयतें हैं जो हमारे सामने रखी हुई हैं। फिर आयत इज ऑल्सो इन द यूनिवर्स। द सन इज एन आयत, इट्स अ निशानी, अल्लाह की कुदरत दिखा रहा है, क्रिएशन है ना, अल्लाह की आयत है वो। द मून इज एन आयत, आफाकी आयात कहते हैं इसको। एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक आफाकी आउटसाइड एक्सटर्नल यूनिवर्स के अंदर ये आयतें हैं, ठीक है। और फिर मिरेकल्स आयात हैं अल्लाह के, फितरत के अंदर अल्लाह की आयत है, दिल के अंदर अल्लाह की आयतें लिखी हुई हैं। कभी कभी ऑनेस्टली व्हेन वी आर रीडिंग द आयत्स ऑफ द कुरान, समटाइम्स माय स्टूडेंट्स दे कॉल मी अप लेटर और मैसेज मी एंड दे से आई फील लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट मी इन योर क्लास, माय सिचुएशन, माय लाइफ, what I'm going through today, what you said today fits exactly on that. और मैं उनको कहती हूँ I wasn't talking about you, Allah was talking about you in the Quran.
It was Allah. This is the miracle of the Quran. Is it's talking about it? It talks to us on a very personal level. Human psyche है ना? Human psyche is exposed over here, and some ayats fit onto some people, and some ayats fit onto some people. But it fits onto us. अगर फितरत pure है, the Quran fits onto us like a glove fits onto your hand. ऐसा लगता है कि दिल के ऊपर इनविजिबल इंक में पहले से कभी लिखी हुई थी, और जैसे कुरान पढ़ते जाते हैं वो कलर उनके ऊपर आता जाता है, रंग चढ़ जाता है उन आयतों के ऊपर, दिल के ऊपर रंग चढ़ जाता है. अल्लाह करे कि हमारे दिल खुल जाए इस नूर के लिए. एंड देन अल्लाह पाक इज सेइंग अल्लाह grasped them and he caught them. Understand, Allah doesn't have enmity with mal. You know, when I have to go out for dars, I make an extra effort to wear jewelry. सब मुझे कहते हैं तुम्हें बहुत शौक है. मैं कहती हूँ नहीं, इस्लाम हमेशा गरीब नहीं होता. हमने फर्ज कर ली है कि सिर्फ गरीब लोग दर्स देंगे, सिर्फ गरीब लोग जो हैं वो इस्लाम की बातें कर सकते हैं. So when I dress up, this is part of my niyat is, unfortunately हमारी दुनिया ऐसी है कि विजुअल कॉन्टैक्ट है. दिस इज जस्ट मी बीइंग अ लिटिल बिट मोर प्रोफेशनल. विजुअली हम जो देखते हैं, अब मैं यहाँ बाल झाड़ और फटे हुए पजामे के साथ, आप सब माशाल्लाह इतने अच्छे घरों से उठकर आए, वुड यू हैव टेकन मी सीरियसली? नो, you wouldn't have. So why is it that Islam cannot have AC वाला कमरा, Islam cannot have? हमें लगता है कि अल्लाह वाले हैं ही वो. बिल्कुल बाहर धूप में बैठ के अगर मैं कुरान पढ़ाऊं ना, मैं बहुत अल्लाह वाली हूँ. मजबूर कर लिया हमने ऊपर कि फकीरी और इस्लाम go hand in hand, इसलिए कि हमने इस्लाम का उरूज नहीं देखा. There was a time when the badshahs of the world were Muslim. When Islam ruled all the way up till the tip of Gibraltar, Spain तक गया था इस्लाम, पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत थी. हमने वो देखी नहीं. हमने देखा इस्लाम का कौन सा टाइम, इस्लाम टेररिस्ट, इस्लाम एक्सट्रीमिस्ट, इस्लाम मुस्लिम को वीजा नहीं मिलता, मुस्लिम ट्रैवल नहीं कर सकता, मुस्लिम चीटर है, उसके साथ बिजनेस नहीं करना. हमने तो इस्लाम का ये हाल देखा. सो दैट्स व्हाई वी मूव्ड अवे फ्रॉम इट. वी सेड नो नो, दिस डजंट वर्क. ये तो सबसे पहले यही कहते हैं ना, वहां देखो इतनी लंबी दाढ़ी और चीटिंग करता है, इतनी लंबी दाढ़ी और इंटरेस्ट लेता है. मसला किसके साथ है? दाढ़ी के साथ है. भाई अगर वो इंटरेस्ट लेता है या वो चीटिंग कर रहा है, ही इज एक्चुअली नॉट फॉलोइंग इस्लाम, राइट? तो दाढ़ी को तो छोड़ दो. लेट्स अंडरस्टैंड and look at the whole picture. Islam has to be applied in its holistic view. That is something that we don't do. हम bits and pieces लेते हैं, फिर हम यही कहते रहते हैं देखो दाढ़ी वाला है, मौलवी है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है और हमारे साथ उसने फ्रॉड किया. So start characterizing this only दाढ़ी. वेस्ट में ये डाला है हमारे अंदर, एक्चुअली करप्शन बहुत ज्यादा वहाँ पे, बहुत ज्यादा है. But even over here, वेस्ट में तो if there is a Muslim और आप यू हैव एन ऑप्शन कि मुस्लिम के साथ आपने बिजनेस करना है या यहूदी के साथ करना है, आप कहोगे मैं यहूदी के साथ करती हूँ. भाई मुस्लिम इज नोन टू बी चीटिंग. बहुत हाई लेवल करप्शन होती है, बट उन्होंने ज्यादा मुझे फील होता है कि हमें हमारे दिल में डाला है. आपको मैं एक बात बताऊं, कब से डाला है ये तो है माइंड कंट्रोल मीडिया इनका करता है. इफ यू रिमेंबर द मूवी बैक टू द फ्यूचर विच वॉज सम 20 years ago, हमारे मतलब हम बहुत जब थे यंग, क्या वो दिन थे, तब बैक टू द फ्यूचर आई थी. उसके अंदर देयर इज अ टेररिस्ट हु इज मेकिंग अ बॉम्ब, हु इज फ्रॉम यमन, ही इज अ मुस्लिम टेररिस्ट. उस वक्त तो दुनिया के ऊपर टेररिज्म का कॉन्सेप्ट भी नहीं था. तब उन्होंने टेररिज्म का नाम इस्लाम के ऊपर लगाया था. 20 साल, कभी जाके आप देखिएगा दोबारा, तब से ये प्रैक्टिस है. तो बहुत सटली इसको इनग्रेन किया गया है. एंड अब तो सोशल मीडिया है, तो अब तो तबाही है. तो इसी सोशल मीडिया को हम यूज करें हदीसें स्प्रेड करने के लिए. रमजान है, दुआएं डालें, जिक्र की तस्बीहात डालें. हो सकता है बिकॉज ऑफ यू, इफ one person reads even one tasbih, you're going to get an ajr for it. These are the things that we need to connect ourselves to. ठीक है. फिर अल्लाह पाक कह रहे हैं, अच्छा, अल्लाह doesn't have enmity with माल. ये सबसे पहले हम निकाल लें अपने दिमाग से कि अल्लाह neither loves your wealth, neither is he impressed by it, neither does he hate it. इस्लाम के अंदर ये मॉन्क्स वाला कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं है कि नहीं अब मैं मुसलमान हो गई हूँ, इसी भी नहीं चलाऊंगी, सारी मैं अच्छे जोड़े पहनना छोड़ दूंगी. और ये नहीं है इस्लाम के अंदर. इनफैक्ट हदीस के मफहूम के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह लाइक्स कि उसकी नेमतें तुम्हारे ऊपर नजर आए. अल्लाह लाइक्स दैट. मगर अल्लाह लाइक्स के लिए थोड़ी करते हैं हम. देखिए इसराफ कहां बनता है? द मोमेंट यू वेयर समथिंग टू इम्प्रेस पीपल. आई एम गोइंग टू वेयर
nice clothes every day in Ramzan, my niyat is going to be for Allah. It's not to impress you. The moment you do step into the rat race, that is where it becomes israf. Otherwise, you can wear a 15-carat diamond. अपनी खुशी के लिए पहनना है, अल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके माँ. In fact, Allah is the one who gave it to you, right? अल्लाह ने नेमतें दी है ना. दिल की नियत, you can't differentiate for other people. It's not your job to judge other people. आप अपनी नियत को करेक्ट यूं करेंगी. माय टीचर, मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है कि शौक तो सबको होते हैं, जूतों के, बैग्स के, सब शौकीन तो माशाल्लाह हम बहुत हैं. अल्लाह हमें बचाए इनके हिसाब देने से. मुझे ये डर लगता है सबसे ज्यादा, अल्लाह मैं इनके हिसाब कैसे दूंगी. सो व्हेन आई टेक आउट अ बैग, एक होता है ना लंच में आप दूसरा लेके जा रहे हैं, डिनर में आप दूसरा लेके जा रहे हैं, इतने हैं तो यूज भी करना है. सबसे पहले मैं अपनी नियत को करेक्ट करती हूँ. Am I taking this because I feel like taking it? Or am I taking it to show it to somebody else? The minute I'm doing it to show it to somebody else, it becomes israf. अपने दिल की खुशी के लिए अब मैं खरीदते हुए भी 100 दफा अपनी नियत सही करती हूँ, 100 दफा करेक्ट करती हूँ, फिर जाके कोई चीज खरीदती हूँ कि हाँ अच्छा नहीं, देखा ये उसने लिया हुआ था, ये मैं भी ले लूँ. नहीं, doesn't work that way. Then it's israf. Then you're stepping into the rat race. हाँ, अगर कोई चीज अपना बहुत दिल चाह रहा है और अपनी खुशी आपको अटैच्ड है, तो फिर दुआ मांगे, अल्हम्दुलिल्लाह करें और ले लें, अपनी नियत को करेक्ट रखें. मगर ये जो रैट रेस प्रॉब्लम क्या है, दैट द दुनिया हैज गॉन क्रेजी इन रैट रेस, कंपटीशन. और ये सबको एक टंगड़ी अपने ऊपर चाहिए ना. पता चले भाई मुझसे अमीर तो कोई पैदा ही नहीं हुआ कराची के अंदर, कैसे पता चलेगा. इवन इन रमजान, रमजान इज सच अ ब्यूटिफुल मंथ. The concept of sending gifts is so beautiful in Ramzan, and it has been just corrupted. It has been made disgusted. वो बड़े बड़े प्लेटर्स बनेंगे बहुत महंगे वाले, फिर उनकी तस्वीर खींचेगी, फिर वो सोशल मीडिया पे लगेगी, फिर थैंक यू सो एंड सो, थैंक यू सो एंड सो, थैंक यू सो एंड सो. Now if you send it to 10 friends and you didn't send it to the 11th, आपने असल में जब वो सबकी पिक्चर्स देखेगी, उस 11वीं का जो दिल दुखाया है, वो अल्लाह के आगे जाके कौन जवाब देगा बताएं. कभी सोचते ही नहीं है ना हम ये रैट रेस के अंदर, क्योंकि हमें तो कंपटीशन हो, मैंने तो फलानी से रैपिंग करवाई और फलानी से, और मेरा तो चादर जो है वो मक्का से आई और तस्बीह जो है वो मदीना से आई और उसके अंदर मैंने इतर डाली. ये कंपटीशन हो गई, ये रैट रेस हो गई. समोसे बनवा के भिजवा देना किसी को, कोई भी नहीं लगाएगा सोशल मीडिया पे समोसों की तस्वीरें. इट्स फाइन. नहीं तो क्यों, इसका मतलब है फेक है ना. और अगर आप नहीं बोलते, लाइक आई डेफिनेटली, इवन व्हेन आई गेट अ गिफ्ट, आई ट्राई नॉट टू पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया. देन आई गेट अ फोन कॉल, यार वो तुमने पिक्चर नहीं लगाई. ऐसा अच्छा, मैंने तो आपको मैसेज किया, मैंने आपको फोन किया, मैंने आपको थैंक यू बोला. सो देन रियलाइज, ट्राई एंड स्टेप अवे फ्रॉम दिस फेकनेस, ट्राई एंड ब्रेक दिस बबल. नबीहा भाई, आपकी तो फ्रेंड्स भेजते ना, मुझे तो पता चल जाता है फ्रेंड कौन भेज रहा है, कौन मुझे चाह रहा है कि मैं उसकी पब्लिसिटी करूं. नहीं बट आपने लगाया नहीं. I know, but try and explain to them that look, I'm trying to stay away from this sin. I don't want to hurt somebody's feelings. And some people, they cannot afford. COVID चल रहा है भाई. कुछ लोग पिछले साल बास्केट्स बेचते थे, इस साल वो नहीं बेच सकेंगे. कुछ लोगों के घरों में मैयतें हुई हैं. थोड़ी एम्पैथी डेवलप करें लोगों के लिए, थोड़ी फीलिंग डेवलप करें, जहां हम, दिस इज पार्ट ऑफ बीइंग मुस्लिम. खाली हमारी नमाजें थोड़ी है और रोजा थोड़ी है, हमने तो ऑल अराउंड अपने आप को मुस्लिम करना है ना. तो बच बच के चलना है, फिर फूके मार मार के चलना है इस रमजान इंशाल्लाह. अच्छा, फिर उसके बाद क्या कि एलीट का सिंबल, शरीयत की एलीट का प्रॉब्लम क्या होता है जब माल बहुत ज्यादा आ जाता है. elite think, I think at some point in time even I used to think this. Alhamdulillah, I have always been blessed, Alhamdulillah. And I think नमाज़ें वगैरह मैं पढ़ती थी, और मुझे कहीं मेरे दिल में, जब मैं हुमा आपा की क्लास सुनती थी ना, मुझे सबसे ज्यादा ये उनकी बात स्केयर करती थी. कहीं मुझे लगता था मिस कॉन्सेप्ट दैट बिकॉज आई एम रीडिंग माई नमाजेज एंड बिकॉज आई एम रियली वेल्थी, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे लगता था कि मैं अल्लाह की कहीं ना कहीं फेवरेट हूँ जरूर. So somewhere our concept becomes so twisted that when wealths are coming, Allah loves us, and if wealths are not coming, Allah doesn't love us. So actually तो 90%, 99% are not wealthy. Does that mean Allah doesn't love them? अगर इसको स्टैंडर्ड इस्लाम से देखा जाए, wealth is no standard to judge Allah's love.
ना ये अल्लाह की मोहब्बत है और ना ये अल्लाह की नफरत है, ये एक्चुअली खुद में एक आजमाइश है, एक टेस्ट है। हमारा माल एक टेस्ट है, इसलिए कि जिसके पास माल आता है दिमाग उसी का तो खराब होता है। भूखे पेट किसका दिमाग खराब होगा? जिसके पास माल आता है उसी के पास तो गुनाह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एनीबडी हु गेट्स वेल्थ, वही तो नफ्स जो है वो कहता है वाह यू यंग, यू रिच, लेट्स स्टार्ट टू पार्टी। सारा प्रॉब्लम तो वहीं शुरू होता है। इट्स अ टेस्ट, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजर ऑफ अल्लाह's लव। अल्लाह's लव हदीस के मफहूम के अंदर आता है when Allah really loves you. Allah loves all of us, there's no doubt about it, but when Allah really loves you, he gives you an opportunity to learn his deen, ilm, and he gives you hidayat. This is the measure of Allah's love, not wealth, not wealth. So alhamdulillah, alhamdulillah, us, we are struggling, we're searching for the ayats of the Quran. Allah allowed us to even open his book. Yes, this is Allah's love and we should feel it. We should feel it this Ramzan inshallah. And like I said, elite का symbol क्या होता है कि we don't care less about शरीयत। कहते हैं कौन सा हलाल कौन सा हराम, अल्लाह गफूर और रहीम है, बात खत्म हो जाती है। this जब पैसा आ जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। Then ego के साथ they clash with the Quran. Rather than reading the Quran and accepting the Quran, they clash with it. They say no, this is not applicable in my life right now. So rather than humbling themselves in front of Allah, they become nauzubillah rebellious against Allah. फिर अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं? अल्लाह कह रहे हैं फिर अल्लाह बड़ा अजाब देता है। जब रिबेल हो जाता है ना कोई, जब कुफर कर बैठता है गुनाहों की वजह से, they thought Allah was impressed by their wealth, nauzubillah. Then अल्लाह कह रहे कुरान के अंदर क्या, वल्लाहु शदीदुल इकाब, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। He has the ability, he has the power and the authority. जब वो पकड़ता है ना, वैसे कोई नहीं पकड़ता। फिरौन को कैसे पकड़ा था? He was drowned. पैलेसेस फिरौन के पास कम थे, पावर फिरौन के पास कम था। फिरौन की तो वो जो उसके हॉर्सेस और कैमल्स थे वो सोने की नखेलें पहनते थे, इतना सोना था उसके पास। आज की दुनिया में हमने इतना पैसा देखा नहीं है जितना फिरौन के पास था। क्या हुआ? एंड मर गया, ड्राउन हो गया। और कैसे? काफिर मर गया। A failed life, could not recognize his life mission, could not spend his life in ibadat of Allah, in fact spent his life denying Allah, in rebellion of Allah. ठीक है? And ended up where? Jahannam. And Jahannam is a cursed place. It's the worst place to end up. ठीक है? Same for कुफारे मक्का। अकीदा, अमल एंड इखलाक, ये फिक्स कर ले किसके हिसाब से? कुरान और सुन्नत के हिसाब से ये कर ले फिक्स। ठीक है? और बदर के जब when Badr happened, Badr is being mentioned, Allah helps ईमान वाले। Badr happened in the 3rd Hijri. ठीक है? Now काफिर जो है, अच्छा, अल्लाह पाक is mentioning in this ayat that they saw them double in number. कितने थे मुसलमान? One group was fighting for fi sabilillah and one group was fighting for the dunya and for power and position and fighting against Allah. Surah Anfal के अंदर Allah mentions in ayat number 44, the Muslims were 313 and the kafir were 1000 in Badr, right? Triple है ना number. Allah Pak is saying in this ayat what? They saw them double. Allah didn't get the math wrong. आप समझे इस आयत के अंदर बहुत बड़ा, I tell you and I keep telling you, Quran changes your perspective. What Allah Pak is telling you over here is Allah has the ability to change how you see things. ये जो विजन है ये किसने दी है? ये अल कयूम ने थामी हुई है, सस्टेन की हुई है। तो कभी बहुत बड़ी चीज आपको छोटी सी नजर आएगी, ये कोई मसला ही नहीं है, मैं अभी कर लूंगी। ये था मोमेंट जब अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है। तो जो मुसलमान 313 खड़े थे इन बदर, दे वर नॉट डिसहार्टेंड बिकॉज दे ओनली सॉ द काफिर एज डबल। दे सॉ अच्छा 600 है लो, और जोश उनके अंदर इतना, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर करेंगे, एक तलवार यूं चलाएंगे, 2-2 तो हम ऐसे ही मार लेंगे, 3-3 तो उन्होंने देखे ही नहीं, 3:1 का रेशो उनको नजर ही नहीं आया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उनके वाई टू increase their courage. Allah is saying he showed them only double. थे 1000 वो काफिर, और कैसी गायबी मदद आई थी मुसलमानों को, उनके मॉरल्स हाई थे,
काफिर को क्या नजर आया था? काफिर को मुसलमान लेस देन 300 नजर आए थे. उनकी तबाही थी ना बदर में. They saw Muslims less than 300. They said, "This we will just trample them." अब ये जो काफिर था, मुकाबला जब हुआ, they're looking with their own eyes, मगर दिखा कौन रहा है? अल्लाह दिखा रहा है. Allah showing them, Allah showed them the angle that He wanted to show them. और फिर अजाब जो काफिरों का आया, बदर के अंदर वो हैवी विंड्स चली थी मुसलमानों की तरफ से, जो अल्लाह की तरफ से मदद आई थी मुसलमानों की, जो उनके दिलों में खौफ अल्लाह ने बिठाया था, वो सब क्या था? वो गायबी मदद थी, मैनिफेस्ट हेल्प ऑफ अल्लाह. ठीक है. एंड अल्लाह इज लतीफ. सटल वेज के अंदर अल्लाह हेल्प करता है, सटल वेज के अंदर. अब जैसे जैसे इंशाल्लाह ईमान बढ़ेगा हमारा रमजान के अंदर, वी हैव टू ऑल्सो बी अवेयर ऑफ, ऐसा लगेगा जैसे अल्लाह गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी. एक नेकी करने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी और आप झपटोगे उसकी तरफ, जिसको पहले स्लाइड करने देते थे ना. you'll be like, wow, like how did this happen? Like Allah opens up ways to do good for us. जहां पहले गुनाहों की महफिलें खुलती थी, अल्लाह हमें उनसे बचाए. अब इंशाल्लाह अल्लाह पाक नेकियों की अपॉर्चुनिटीज देगा. recognize them and jump towards them इंशाल्लाह. So भरोसा अपनी इंटेलिजेंस पे नहीं करना. ठीक है. नियतों को हम बार बार दुरुस्त करते रहे, नियतों को खालिस कर ले अल्लाह के लिए. भरोसा अपनी इंटेलिजेंस पे नहीं करना, ओनली ऑन अल्लाह. व्हाट अल्लाह इज सेइंग इन दिस आयत इज एक्चुअली दिस इज अ फोटोशॉप्ड सीन. अल्लाह सेइंग मैंने एडिटिंग कर दी पूरी मूवी की जो सामने चल रही थी बदर की, मैंने एडिटिंग कर दी. दिस इज हाउ अमेजिंग द पावर ऑफ अल्लाह इज. व्हेन यू ट्रस्ट अल्लाह, यू डोंट वरी अबाउट द ऑड्स. You don't worry about the odds. मुझे भी बहुत होता था, मैं अकेली क्या करूंगी, कितनों को दर्स दूंगी. अल्हम्दुलिल्लाह आज कितने सुन रहे हैं दर्स. और me, I was the last person to imagine myself to be giving a dars in my life, and here I am today. I'm a living example of beating the odds. आप सोच भी नहीं सकते ना कि अल्लाह पाक कैसे मदद फरमाता है फिर. लेकिन सारी जिंदगी बस लोगों से डर डर के, दुनिया से डर डर के बैठे रहेंगे, अल्लाह को राजी नहीं करना. We have to trust Allah. अगर अल्लाह के लिए निकले हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह जरूर मदद करता है. बसीरत वालों के लिए सबक है. अल्लाह सेइंग जिनके पास इंटेलिजेंस है, ट्राई नॉट, you try your level best, but you don't trust yourself, you don't trust the dunya, you leave the situation, hand it over to Allah, और तुम जम जाओ बस. Another angle to this is, अच्छा, we are going to do this in the next class. Ayat number 14, we are going to do this in the next class, and that is the 7 halal loves that are mentioned in ayat number 14. halal है, लेकिन हमारे लिए मसला कैसे क्रिएट करते हैं, इंशाल्लाह we'll continue with this tomorrow. wal akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.